اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, گڈ مارننگ. صبح 9 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جیسے کہا جاتا ہے کہ زندگی میں آپ کو پازیٹیو رہنا چاہیے, پازیٹیو سوچنا چاہیے, اس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. اس سے سائنس نے بھی پروو کیا. ہم تو خیر اپنے دین کے حوالے سے یا ہمارے جو بڑے سمجھاتے ہیں ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ اچھا سوچو, اچھا بولو, منہ سے اچھی بات نکالو. لیکن اب یہ سائنٹیفکلی بھی پروو ہو گیا ہے کہ جس چیز کے لیے آپ بار بار کہتے ہیں یا جس چیز کے بارے میں آپ ایکچولی سوچ رہے ہوتے ہیں وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. الٹیمیٹلی آپ کی انرجیز اس کی طرف ڈائریکٹڈ ہو جاتی ہیں, آپ تمام چیزیں کرنے اس طرح لگ جاتے ہیں, اور میرے خیال میں آٹومیٹیکلی جو آپ کے ارد گرد کی چیزیں ہیں وہ بھی سنک ہونا شروع ہوتی ہیں, اور جو آپ چاہتے ہیں وہ ہونے لگتا ہے. جیسے ایک اور مائنڈ سائنسز میں نے ایک بار سنا تھا کہ ہمارے ایک گیسٹ ہمیں بتا رہے تھے, بلکہ مائنڈ سائنسز ایکسپرٹ تھے, وہ بتا رہے تھے کہ گلاس کا اگر آپ کے پاس کوئی جار ہے اور اس میں اگر آپ کو بڑا گھر چاہیے, گاڑی چاہیے, یا کوئی بھی مٹیریل ایسپیکٹ سے آپ کو ترقی چاہیے, اس کی تصویر آپ اس میں ڈالیں, کچھ کوائنس ڈالیں اور پتہ نہیں میگنیٹ ڈالیں, اس طرح کی کوئی چیزیں تھیں, اور اسے اپنے سامنے رکھیں. ود دا پیسج آف ٹائم شاید آپ کو لگے گا کہ یہ چیزیں جو میں سوچتا رہا ہوں یا سوچتی رہی ہوں یہ جلدی جلدی ہونے لگی ہیں. تو خیر آپ سوچ ہی پازیٹیو رکھیں اور منہ سے پازیٹیو بات نکالیں, تو میرے خیال میں یہ بھی بڑا ڈفرنس کریٹ کرے گا. آج کے ہمارے شو میں ہم یہ والی پازیٹیوٹی پہ بات نہیں کر رہے ہیں, لیکن ہم دوسری چیزوں پہ ضرور بات کر رہے ہیں. اور آج کی ہماری ٹاپ سٹوریز یہ ہیں. PSL 3 دھواں دار بیٹنگ, تیز رفتار بالنگ, شائقین پرجوش. اصلی اور تازہ شہد کی پہچان کیا؟ سینٹ الیکشن اور سیاسی جوڑ توڑ. بلوچ ثقافت کا دن, پرجوش اور باہمت قوم. صبح 9 میں. اینڈ آپ نے یہ ہماری ٹاپ سٹوریز دیکھی جو آج ہمارے 2 گھنٹے میں ہم آپ سے جس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے. مہمان بھی موجود ہوں گے. PSL کی اگر بات کی جائے تو آئی تھنک دن کا یا رات کا کوئی ایسا پہر نہیں ہے جس پہ لوگ کرکٹ کی بات نہ کرنا چاہتے ہوں. میرا تو اپنا یہی ایکسپیرینس ہے. آپ لوگوں کے ساتھ جتنا وقت میں نے گزارا ہے, PSL یا کرکٹ ایک ایسی چیز ہے سوری جس کے بارے میں آپ ہر وقت بات کرنا چاہتے ہیں. اور آج اس وقت کے PSL کا سٹیٹس, آج کا میچ ملتان سلطان کراچی کنگز آمنے سامنے, جن کو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ فائنلز تک بھی شاید یہی دونوں ٹیمز آمنے سامنے ہوں گی. ملتان سلطان پہلی دفعہ آئی ہے, سب سے مہنگی ٹیم ہے, لیکن جس بھاری طریقے سے انٹری ماری ہے اس کے کیا کہنے. اس تمام چیزوں پہ ڈسکشن کرنے کے لیے آئی ایم سو سوری, ابھی تک میرا گلا بالکل ٹھیک نہیں ہوا ہے. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں. سہیل خان آج ہیں FM 101 کے اسپورٹس جرنلسٹ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے سہیل, ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ الحمدللہ. اور ویسے تو آئی ڈونٹ سی کہ جب آپ جیسی شخصیت ہمارے ساتھ بیٹھے ہوں تو ہمیں ایسا محسوس ہونا چاہیے کہ کوئی بھی آپ کی پرسنالٹی میں کمی ہے, لیکن کیونکہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آج آپ نے کالا چشمہ لگایا ہے, تو یہ فار فن لگایا ہے یا کیا وجہ ہے, آپ ہی بتا دیجیے. خیر یہ تو فار فن تو نہیں کہہ سکتے, بس دراصل کیونکہ میں بلائنڈ ہوں, لیکن میں نے اس چیز کو کبھی اپنی کمزوری نہیں بنایا جی, تو اسی وجہ سے میں نے کالا چشمہ لگایا ہے. اچھا, میں یہ آپ سے اسی لیے پوچھنا چاہتی تھی کیونکہ مجھے خود بیان کرتے ہوئے تھوڑی سی دقت محسوس ہوتی ہے, کیونکہ مجھے ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی اگر کسی میں کسی ایک اپیرنٹ چیز کی کمی رکھی ہے تو اسے دوسرے طریقے سے نہ نوازا. اور آپ کو تو ماشاءاللہ آواز سے نوازا ہے, آپ کو ٹیلنٹ سے نوازا ہے. اور PSL کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ پاکستان سپر لیگ کے بڑے جیسے کہنا چاہیے زور و شور سے بہت ہی زبردست مقابلے جاری ہیں. دبئی کے میچز کے بعد اب ایکشن جو ہے وہ شارجہ شفٹ ہو چکا ہے, اور کل بھی بڑا یادگار مقابلہ ہم نے دیکھا. پشاور زلمی نے جس طرح میچ جیتا, ان کے کپتان ڈیرن سیمی انجرڈ ہونے کے بعد آئے اور جس طرح میچ کو انہوں نے فنش کیا, تو یقینی طور پہ جو مقابلوں کا معیار ہے وہ پچھلی دونوں PSL سے اگر میں کمپیئر کروں تو اس بار کہیں زیادہ مزہ آ رہا ہے. اچھا, زیادہ مزہ آ رہا ہے, اور آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹیمز اور زیادہ پروفیشنل ہو گئی ہیں اور زیادہ بہتر ہو گئی ہیں؟ بالکل, ٹیمز بھی زیادہ پروفیشنل ہو گئی ہیں اور بہتر ہو گئی ہیں. جو سب سے بڑا امپیکٹ ہے اس PSL کا وہ یہ ہے کہ ایکشن جو ہے وہ آخر میں لاہور اور کراچی شفٹ ہو جائے گا. تو سب سے بڑی بات یہی ہے کہ لوگ اسی کے لیے بہت زیادہ ابھی تک ایکسائٹیڈ ہیں کہ ہمیں 2 پلے آف اور ایک فائنل جو ہے وہ لاہور اور کراچی میں دیکھنا ہے, اسپیشلی فائنل جو ہے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں دیکھنا ہے. اوکے جی, فائنل کے لیے تو اور ابھی سے لوگ ٹکٹس کے بارے میں پوچھنا شروع ہو گئے, ابھی سے یہ تمام پیش رفت ہو گئی ہے. لیکن آپ کو کون سی 2 ٹیمز یہی لگتی ہیں, جیسے ملتان سلطان کی میں نے بات کی اور کراچی کنگز کی, کہ لوگوں کی پریڈکشن یہ ہے کہ شاید یہی 2 ٹیمز ہوں گی جو ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گی؟
ابھی ٹو ارلی ٹو سے ہے. اگر ہم اوور آل بات کریں میچز جتنے ہوئے ہیں, ملتان سلطانز اور کراچی کنگز کی ٹیمیں ابھی تک بہت ٹاپ پہ ہیں, لیکن جو پی ایس ایل کے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں, پلے آف میں آپ کو پتا ہے پھر ایلیمینیٹر میں کچھ پتا نہیں ہوتا. اگر خدا نہ خاصا کسی ٹیم کا برا دن ہو گیا اور شکست ہو گئی تو کوئی اور ٹیم بھی فائنل میں آ سکتی ہے. لیکن ابھی تک کی اگر پرفارمنس کی بات کریں تمام تر ٹیموں کی, تو ملتان سلطانز اور کراچی کنگز کی ٹیمیں بہت ہی عمدہ پرفارم کرتی ہیں, بہت عمدہ پرفارم کری ہے. اور اگر انڈیویجولی آپ کرکٹرز کو دیکھیں تو کس کا آپ کو لگتا ہے کہ پروفیشن آگے لائم لائٹ میں آنے والا ہے اس پی ایس ایل کی پرفارمنس کی وجہ سے؟ دیکھیں, ہم نے پشاور زلمی کے ایک ینگ لیگ اسپنر ابتسام شیخ کو دیکھا, بہت ہی اچھی بالنگ کرتے ہوئے دکھائی دی. اتنا خاص انہیں فرسٹ کلاس کرکٹ کا تجربہ نہیں ہے, لیکن وہ پی ایس ایل میں آئے اور لائن لائٹ میں آئے. اس کے بعد ایک اور ایسے کھلاڑی ہیں جن کی عمر تو اب کافی ہو چکی ہے, تقریباً 34 سال, امید آصف ان کا نام ہے. لیکن یہاں پہ تھوڑا سا یہ ہے کہ لوگ اتنا فرسٹ کلاس کو فالو کرتے نہیں ہیں, اور جو کھلاڑیوں کو لائن لائٹ میں آنا ہوتا ہے وہ پی ایس ایل کے تھرو ہی آ جاتے ہیں, چاہے وہ 24 سال کی عمر میں ہیں یا 34. تو امید آصف نے جس طرح پرفارم کیا پی ایس ایل میں, ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ انہیں کوئی موقع ملے اور وہ پرفارم کرے. فائنلی انہیں موقع ملا, پرفارم کرتے ہوئے دکھائی دی. اسی طرح کئی اور کھلاڑی ہیں جیسے کراچی کنگز کے محمد عرفان جونیئر امیجنگ پلیئر ہیں, اسی طرح وہ بھی لائن لائٹ میں نظر آ رہے ہیں. تاکہ وہ پچھلا پی ایس ایل بھی کھیلے تھے, لیکن اس پی ایس ایل میں بھی ان کی پرفارمنس بہت اچھی ہے. اور ایکسپیرینس پلیئر جو ہیں جن کے پاس تجربہ ہے وہ تو ایسی بات ہے, شاہد آفریدی کو آپ دیکھ رہے ہیں, ڈوین اسمتھ, ویسٹ انٹرنیشنل کی تو خیر ہم بات کیا کریں, پاکستانی لوکل ٹیلنٹ شاہد آفریدی, ماز وسیم کا کپتانی کا ٹیلنٹ بڑا کھل کر سامنے آ رہا ہے, تاکہ وہ انڈر 19 لیول پہ یا ڈومیسٹک لیول پہ بہت عرصے تک کپتانی کرتے ہیں. اچھا, اور یہ بھی ایک چیز ہے پی ایس ایل کا ایک تحفہ یہ بھی ہے کہ وہ تمام پلیئرز جو ریٹائرمنٹ لے چکے تھے یا جو اب آپ کو کرکٹ میں نظر نہیں آ رہے تھے, وہ تمام لوگوں نے بھی کسی نہ کسی کیپیسٹی میں پی ایس ایل کو جوائن کیا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ وسیم اکرم صاحب کی ٹیم ہے اور اس میں شعیب اختر صاحب کیپٹن کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں میرے خیال میں بڑی امپورٹنٹ ہیں. جی بالکل, ملتان سلطان کا وسیم اکرم حصہ ہیں, اور اس سے پہلے وہ اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیم کے ساتھ تھے, انہوں نے چیمپئن بنوایا پہلے سیزن میں. اب وہ ملتان سلطان سے جوائن کر چکے ہیں. شعیب ملک کی کپتانی کر رہے ہیں. شعیب ملک میں شعیب اختر اور شعیب ملک میں ہمیشہ شعیب ملک کپتانی کر رہے ہیں. اور اسی طرح وقار یونس اب اسلام آباد یونائٹڈ کے ساتھ ہیں, معین خان جو ہیں وہ کوئٹہ کے ساتھ ہیں, اور کئی کھلاڑی ہر ٹیم کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسوسیٹڈ ہے. راشد لطیف کراچی کنگز کے ساتھ ہیں, اور اسی طرح جو ہے وہ اگر ہم بات کریں پشاور کے ساتھ بھی محمد اکرم ثقلین مشتاق. تو یہ اچھی بات ہے کہ جو ہمارے ریٹائر ہوئے کھلاڑی ہیں, دیکھیں یہی ہوتا ہے, تجربے سے ینگسٹر سیکھیں گے. اب جتنے بھی ینگسٹر ہیں, وسیم اکرم آپ کو خود بھی اندازہ ہے کہ اتنا بڑا لیجنڈ پاکستان کے نام ہے, ان کے ساتھ جتنے ینگسٹرز ہوں گے ٹیم کے ساتھ, بھلے وہ کچھ میچز نہیں کھیلیں, کم کھیلیں, لیکن وسیم اکرم کا ہونا ڈریسنگ روم میں کتنا فائدہ دیتا ہوگا ان ینگسٹرز کو. اور یہ ایک انڈائریکٹ قسم کی کوچنگ ہو رہی ہے, انڈائریکٹ قسم کی ٹریننگ ہو رہی ہے, اور اس سے میرے خیال میں جو ہمارے کرکٹرز نکل کے سامنے آئیں گے, جو آگے ہماری ان میں سے obviously بہت سارے تو ہماری نیشنل کرکٹ ٹیم کا حصہ ہے, لیکن اور بھی ہمارے پاس ٹیلنٹ آتا جائے گا, اینڈ ویل ہیو مور چانسز, یا ہمارے پاس زیادہ آپشنس یا اپرچونیٹیز ہوں گی کہ ہم اپنے ان تمام ہنرمند لوگوں کو پلیٹ فارم فراہم کر سکیں یا ان کو یوٹیلائز کر سکیں. ایک تو پاکستانی کوچز کا ہونا, اور آپ اس بات کا بھی اندازہ لگائیں کہ جتنے بڑے نام انٹرنیشنلی ان کھلاڑیوں کے ساتھ ہیں, کیون پیٹرسن, شین واٹسن, بہت بڑے بڑے نام, برنڈن میکلم, سنیل نارائن, اور بھی بڑے بڑے نام ہیں. یہ جب کھلاڑی ڈریسنگ روم ان کے ساتھ شیئر کرتے ہوں گے تو ان سے بھی کتنا کچھ سیکھتے ہوں گے. بہت سیکھتے ہوں گے, بالکل. اور بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ یہاں پر آئے اور بڑی جلدی جلدی آپ نے یہ تمام چیزیں ہمیں پی ایس ایل کے حوالے سے اپڈیٹ کی. ایک بریک آ گیا, بریک کے بعد آج میری ٹیم کو لگا کہ شاید میرا الرجی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ شہد کے حوالے سے گفتگو کرنا بنتی ہے, لیکن ہم سب ہی ہمیشہ سے اس چیز کے لیے کنسرن رہتے ہیں کہ جب بھی آپ شہد خریدنے جائیں, اصلی خالص شہد کہاں ملتا ہے, کب ملتا ہے, کیسی اس کی پہچان ہوتی ہے, اس سب پہ ہم بات کریں گے آفٹر دی بریک.
पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हुकूक की जमानत दी गई है, जिसके मुताबिक ऐसे तमाम कवानीन या वो रस्म व रिवाज जिन्हें कानून की पुष्टपनाही हासिल हो, कालदम करार पाएंगे अगर वो बुनियादी इंसानी हुकूक की नफी करते हों। शहद के हवाले से इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं और असली खालिस शहद की पहचान क्या है। और हमारे घरों में जितनी डिस्कशन होती है शहद के हवाले से, हमें लगता है कि हर बॉटल जो शहद की आ रही है वो शायद चीनी से बनी है और उसमें कोई खालिस अज्जा नहीं है। लेकिन हमारे मुल्क में मुझे जान के बड़ी खुशी हो रही है कि ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने बी मैनेजमेंट में मास्टर्स किया है ऑस्ट्रेलिया से और एपीकल्चरिस्ट हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आसिम शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। और सबसे पहले तो मैं वो बात जो मैंने घरों में सुनी है कि भाई इतनी शहद की मक्खियां कहाँ हैं जितना शहद बन के मार्केट में आ रहा है। जी, ये मैं आपको वादे करूं कि पाकिस्तान दुनिया के खूबसूरत तरीन मुल्कों में से है। हमारे यहाँ सरसों, तोरिया, बरसीन और बहुत से बागात हैं। तो वैरायटी के हिसाब से पाकिस्तान के पास दुनिया में सबसे ज्यादा शहद की वैरायटी हासिल हो सकती है। हमारे यहाँ थोड़ा सा काम कम है इस पे। हमने अपने किसानों को इसकी अभी तालीम कम दी है। ठीक है। इंशाल्लाह जैसे जैसे गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटियाँ इसमें फाल होती जा रही हैं, हम अपने कुदरती किसानों को किस तरह की तरबियत देने की जरूरत है जिसके बाद आप ज्यादा फैचिंग कर सकते हैं हनी की और प्योर की? पाकिस्तान में किसानों को शहद की मक्खियां पालने की तरबियत इसलिए भी जरूरी है कि शहद की मक्खियां ना सिर्फ शहद देती हैं जी, बल्कि इसके पॉलिनेशन इफेक्ट की वजह से फसलों की पैदावार बढ़ जाती है। अच्छा। जैसे आपको बताऊं कि सरसों का फूल जो है उसको जब तक शहद की मक्खी उस पर बैठ के उसके जीरे को इधर से उधर नहीं करेगी वो बीज नहीं बनेगा। इसी तरह से तमाम फल और सब्जियां जो हैं वो शहद की मक्खी की मोहताज है कि वो कुदरती अमले ज़ेरगी या जिसे पॉलिनेशन कहते हैं वो जब मिलेगा तो वो पैदावार बढ़ेगी। ओके। अच्छा, ये थोड़ा क्योंकि मैंने आपसे पहले भी पूछा कि मुझे हर बोतल में लग रहा है किसी में डार्क है किसी में लाइट शहद है, लोग इसको भी समझते हैं कि ये कोई किसी किस्म का एलिमेंट है जिससे पता चलेगा कि शहद खालिस है या नहीं, क्या ये वजह है? शहद जो मुख्तलिफ फूलों से आता है उसके मुख्तलिफ रंग है, मुख्तलिफ खुशबू है, मुख्तलिफ जायका है और इसी तरह मुख्तलिफ हकीमी खवास हैं। तो जैसे ये मेरे सामने एक शहद रखा है, ये पलूसा के फूल दरख्तों से हासिल किया है। पश्तो में इस पौधे को पलूसा कहते हैं, पंजाबी में फुलाई कहते हैं, अंग्रेजी में अकेशिया मॉडेस्टा कहते हैं। ये हमारे इस्लामाबाद में दामन को से लेकर झेलुम, चकवाल, हजारा तक पाया जाता है और इसका शहद बहुत ही खुशबूदार, लाजवाब और सेहत के लिए अच्छा होता है। और ये शहद जो है ये बेरी के फूलों से हासिल किया हुआ है। जब बेरी मियाँवाली, तलागंग, चकवाल और डेरा गाजी खां में बेरी के कुदरती जंगलात में जब फूल आता है तो वो सिर्फ सितंबर अक्टूबर के चंद हफ्ते होते हैं और उस वक्त जो मक्खियां शहद कलेक्ट करती हैं वो बेर का शहद होता है। ठीक है। और ये शहद हालांकि बहुत मीठा है। राइट। आप ये देखें कि ये इस शहद से ज्यादा गाढ़ा है और ज्यादा मीठा भी है। लेकिन ये है और कि कलर का भी फर्क है, कलर का भी डार्क है। लेकिन ये पूरी बोतल भी अगर कोई शुगर पेशेंट पी ले और ग्लूकोमीटर पे चेक कर ले तो उसका शुगर लेवल नहीं बढ़ता। ओके। अच्छा, ये चीजें आपने यहाँ हमें क्लैरिफाई की और आसानी हमारे लिए पैदा की कि साल में हर कोई मौसम में जाहिर है कोई ना कोई फूल होता है और उसके तहत बीज आ जाती हैं, तो बी की मैनेजमेंट भी करनी पड़ती है। जी, शहद की मक्खियों को आप डब्बों में भी पाल सकते हैं और उन डब्बों को मौसम के हिसाब से दूसरे इलाकों में शिफ्ट भी कर सकते हैं। ओके। तो पाकिस्तान चूंकि इतना खूबसूरत मुल्क है कि यहाँ पे फूलों का मौसम कभी खत्म नहीं होता। जैसे ओके जी में जब सरसों का फूल खत्म हो जाता है तो रहीम खां में सरसों का फूल शुरू होता है और फिर जब रहीम खां में सरसों का फूल खत्म होता है तो रावलपिंडी रीजन में सरसों का फूल शुरू होता है। ठीक है। ये मुझे कोई प्लेट और कपड़ा देके गए हैं, इसकी कोई खास बात है? इसका ताल्लुक आपसे है? आपने कुछ करके दिखाना है? लोग मुझसे सवाल करते हैं कि शहद की पहचान क्या है। तो भाई शहद तो वैसे हम किसी लेबोरेटरी में उसको चेक कर सकते हैं
کہ اس کے اندر انزائمز کیا ہیں. جی. لیکن ایک سادہ طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم شہد کے ایک قطرے کو کسی کپڑے پر گرائیں, ململ کے کپڑے پر, کسی بھی کپڑے پر, اوکے, تو میں اپنی جی, تو ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ دیکھیں, اگر اس کو کلوز کر کے دکھائیں, جی جی, کہ یہ موتی کی طرح یہ قطرہ دھار جو ہے موتی موتی بن رہے ہیں, اور وہ جو نیچے جا رہا ہے تو اوپر کی جگہ سوکھتی جا رہی ہے. اچھا, اصلی شہد کبھی چپکنے کی کوشش نہیں کرتا. اوکے, یعنی کہ وہ ہے تو لکوڈ, ہاں, لیکن وہ خود بخود جذب نہیں ہوتا. اوکے جی, یہ دیکھیں یہ موتی بن کے جا رہا ہے. اور آپ نے کہا تھا کہ ابھی جب ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ بہت کم شرح ہے پاکستان میں کہ شہد خالص نہ ہو, ورنہ شہد خالص ہی ہے, ایسا ہے؟ اصل میں پاکستان میں بہت کم لوگ ہیں, 2-4% شہد جو ہے وہ چینی سے بنا ہوا لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں. زیادہ تر لوگ اچھی نیت سے ہی شہد کو پیک کرتے ہیں. اچھا, لیکن ہوتا یہ ہے کہ ٹیکنیکل معلومات کی کمی کی وجہ سے لوگ جس وقت شہد ہارویسٹ کرتے ہیں تو اس وقت اس کو جو ہے کبھی کچا شہد توڑ لیتے ہیں. اوکے, پھولوں سے جو مکھیاں رس لاتی ہیں اور چھتے میں ڈالتی ہیں تو وہ شہد نہیں ہوتا, جی, بلکہ وہ جو ہے وہ پھولوں کا رس ہوتا ہے جو چھتے میں پڑا نظر آتا ہے. جو مکھی لاتی ہے وہ شہد نہیں بناتی, وہ صرف رس کلیکٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, پھر دوسری مکھی اس قطرے کو اٹھا کے اپنے منہ میں لیتی ہے, پیٹ میں لیتی ہے, ایک ببل بناتی ہے, واپس منہ میں لیتی ہے, ببل بناتی ہے, اوکے, اور پھر چھتے میں ڈال دیتی ہے. تو اس کا موئسچر لیول 60% سے گر کر 50% ہو جاتا ہے. پھر ایک اور مکھی اسی قطرے پہ محنت کرتی ہے اور وہ موئسچر لیول 50 سے 40 آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک ہی قطرے پہ کئی مکھیاں محنت کرتی ہیں. یہ مکھیوں کی بہت, اسی لیے تو کہا جاتا ہے ہمیشہ ہارڈ ورکنگ کی مثال اگر کسی کی دی جاتی ہے تو وہ مکھیوں, شہد کی مکھی کے حوالے سے ہی دی جاتی ہے. اسی وجہ سے اتنا کام کرتی ہیں, ایک دانے پہ اتنی مکھیاں, ٹیم ورک ہے ان کا. ایک قطرے پر کئی مکھیوں نے محنت کر کے اس نیکٹر کو جب شہد بناتی ہیں تو وہ 22-23% موئسچر لیول آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں اس کا شہد کی مکھی کے جسم کے انزائمز بھی شامل ہو جاتے ہیں. رائٹ. تو اچھا, وہ والا گاڑا ہے وہ بھی اگر آپ کپڑے پہ ڈراپ کریں گے تو وہ اس کا بھی یہی ریزلٹ ہوگا. جی, یہ دیکھیں یہ دیر کا شہد ہے. جی, حالانکہ یہ کافی گاڑا ہے, یہ گاڑا ہے بالکل, لیکن اس کے باوجود بھی جب ہم اس کو کپڑے پر گراتے ہیں تو یہ چپکنے کی کوشش نہیں کرتا. اوکے, بلکہ یہ دیکھیں یہ اس کے موتی موتی سے بنتے ہیں اور وہ نیچے جا رہے ہیں. اور یہ جو لکیر ہے یہ موتیوں کی شکل میں ہو گئی, الگ الگ ٹوٹ گئے. جبکہ کوئی بھی آپ شیرہ بنائے, پتلا بنائے یا گاڑا بنائے, وہ اس طرح سے میں قریب سے بھی دیکھنا چاہتی ہوں. یہ جو آپ موتی کا کہہ رہے ہیں, مجھے تو اتنی ضرورت ہے کہ استعمال کر لینا چاہیے. یہ موتی موتی آپ کو لگ رہا ہے جی کہ یہ جو لائن جا رہی ہے یہ خود ہی نیچے چلتے جائیں گے اور پھر یہ جگہ آپ کو سوکھی ملے گی, اور بیچ بیچ میں گیپ بھی ہوتا جائے گا. بیچ میں گیپ بھی ہوتا جائے گا. اوکے, تو آپ کو ایسے پتہ چلے گا. اور باقی یہ تھک ہونے کے باوجود نیچے کی طرف آ رہا ہے. یہ لیجیے جو آپ نے بتایا, یہی طریقہ ہے اصلی شہد کی پہچان کا. نہیں, اس کو آپ پانی میں بھی ڈال کے دیکھیں, اگر کسی شفاف جگ میں ڈالیں تو وہ سیدھا جا کے نیچے ڈراپ ہو جائے گا. اور جیسے اگر کوئی لکوڈ شربت ہوگا تو وہ دھواں چھوڑتا ہوا جائے گا. اچھا, اور وہ تھوڑا سا خود بخود گھلنا شروع ہو جائے گا. جب تک اس کو زور سے گھولیں گے نہیں تو شاید گھلے گا نہیں. تو زیادہ تر اس کا مطلب ہے ٹھیک ہوتا ہے. کمپنی کے حوالے سے اگر ہمیں جاننا ہو کہ کوئی بھی کمپنی کتنی آتھینٹک ہے, وہ کیسے پتہ چلے گا؟ پاکستان کی ساری کمپنیاں جو ہیں بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور لوگ اس پہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں, اچھی مشینری پیکنگ کی استعمال کر رہے ہیں, اچھے اسٹورز بنا رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ابھی تک پاکستان میں ہم امپورٹڈ چیزوں کے عادی ہیں جی, اور امپورٹڈ چیزوں کو اچھا سمجھتے ہیں. جی, تو میری یہی لوگوں سے ہے کہ پاکستانی پروڈکٹس کو بھی آزمائیں. اور ایون یہ کہ جو لوگ زیادہ شوقین ہیں وہ اپنے گھر کی چھت پہ یا بیک یارڈ میں 1-2 ڈبے مکھیوں کے پال بھی سکتے ہیں. یہ بالکل خطرناک چیز نہیں ہے. ہاں, اگر پالنا آئے تو, ورنہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے اگر گھر میں آ گئی ساری. نہیں, شہد کی مکھیاں کبھی بھی شوقیہ خود نہیں کاٹتی, وہ ہمیشہ اپنے ڈیفینس میں کاٹتی ہیں. ہم نے تو ایسا کبھی ان کو کچھ نہیں کیا ہوتا, پھر بھی دیکھتے ہیں کہ کاٹ ہی لیتی ہیں. آپ ان کے درخت کے نیچے سے بھی گزرے اور اگر کوئی آپ سے ٹکرا گئی تو کاٹ لے گی. اچھا, اب آپ کو میں یہ بتاؤں کہ جب مکھی سے آپ کے شہد کی کاٹتی ہے تو اس میں بھی فائدہ ہے. اس میں بھی فائدہ ہے, آپ کو بڑھاپے میں آرتھرائٹس نہیں ہوگا. اچھا, اگر ایک دفعہ کاٹا
एक दफा काटो तो थोड़ा सा फायदा होगा, लेकिन अगर आपको आर्थराइटिस शुरू होने के इम्कानात हैं तो आप महीने में एक दफा जरूर कटवा लिया करें। और उसके बाद बहुत जलन होती है, लेकिन हाँ कटवा सकते हैं आप। जी। तो जिस्म के अंदर जो है, हमारे हर इंसान के जिस्म के अंदर एंटी एलर्जी सब्सटेंस मौजूद होता है, लेकिन वो सो रहा होता है। हाँ, अभी आजकल मेरे साथ तो बिल्कुल वो जब स्लीपिंग शहद मोड पे की मक्खी काट लेती है तो ये सब्सटेंस जाग जाता है। तो शहद की मक्खी से तो नहीं कटवाते, तो मेरे ख्याल में मैं शहद ही इस्तेमाल करूँ तो मेरा गला ठीक हो जाएगा। गले के लिए आप पाकिस्तान का बेरी, ये अजवैन का शहद इस्तेमाल करें। जी, ये पाकिस्तान की खूबसूरत वादियों ज़ियारत और लोरालाई से हासिल होता है। और थोड़ा रेडिश सा है ना ये? जी, ज़ियारत और लोरालाई में जब बर्फ पिघलती है तो लोग जो हैं वहाँ पे मक्खियाँ ले जाते हैं। इसको इस्तेमाल करने से गला ठीक हो जाता है? जी, और इसमें अगर थोड़ी सी दालचीनी भी मिला लें तो बहुत ही अच्छा है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने बहुत बेहतरीन तरीके से हमें तमाम चीज़ों के बारे में समझाया, और मेरे ख्याल में जितनी मिथ्स है ना उनका आपने ज्यादा बेहतर तरीके से उनको क्लैरिफाई किया है। एक चीज मैं और वाज़ेह करना चाहूँ कि पाकिस्तान में लोग कहते हैं छोटी मक्खी, बड़ी मक्खी, पहाड़ी मक्खी, देसी मक्खी, जंगली मक्खी, ये सब झूठी बातें। अच्छा, शहद की मक्खी का शहद की वैरायटी से कोई ताल्लुक नहीं है। जब भी हम कोई चीज की बयान करें तो हम उसके सोर्स ऑफ ओरिजिन बताना चाहिए कि वो कौन से फूल से आए हैं। मक्खी तो एक मीडियम है, एक कैरियर है। मक्खी उसका जायका, खुशबू या हकीमी खवास तब्दील नहीं कर सकती, वो सिर्फ अपना काम कर रही है। वो अपना सिर्फ काम कर रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद सेनेट इलेक्शन पे बात करेंगे। खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता एतराज़। मैं हूँ शहजाद रज़ा। कानून का ये सबसे बड़ा असूल नहीं है कि यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो मैप को अगर आप पढ़े तो ये बिल्कुल उल्टा है, यू आर गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। स्ट्रेटेजिक जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान अमेरिका के अभी और मुस्तकबिल में, आप क्या समझते हैं, क्या नौयत होगी? पाकिस्तान से वो पाकिस्तान की जो हैसियत है उसके मुताबिक ताल्लुकात रखें, अफगानिस्तान के हवाले से न रखें, सिर्फ टेररिज्म के हवाले से न रखें। कि आइन की बालादस्ती हो और उसके मुताबिक लोगों की राय की कदर की। अगर टकराव होना होता तो हम ये काम न करते, हम वो टकराते। हमने ये जो रैली निकाली है इतनी बड़ी, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने करते हैं ना। अगर हमने टकराना होता, हमने नहीं टकराना था। हजारों का टकराव हम ये समझते हैं मुल्क के लिए दुरुस्त नहीं है। सेनेट इलेक्शंस पे हम बात करेंगे और सिंध की सूरत हाल इस वक्त क्या है। 4 सीट्स MQM की थी, 8 सीट्स पीपल्स पार्टी की थी, और अब क्या सूरत हाल है उसके बारे में मेरे ख्याल में मुझे तो सिर्फ एक सवाल करना है। हमारे इस वक्त के जर्नलिस्ट भरपूर डिस्कशन और भरपूर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे। हम खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ दो चांडियो साहब मौजूद हैं एंड हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रफत सईद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप दोनों खैरियत से हैं? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक। और क्या होने वाला है सेनेट के इलेक्शंस में? एक दिन है और कल की सेनेट इलेक्शन होने वाली है, तो आज का दिन जितनी जोड़ तोड़ होने वाली है वो आज होगी। आज मीडिया काफी मसरूफ रहने वाला है। कल से हो रहा है क्योंकि कल से एक्टिविटीज शुरू हुई है। पीपल्स पार्टी अपनी एक्टिविटीज कर रही है और मुत्तदा की अपनी 2 ग्रुप्स हैं तो उनके अपने मेंबरों से राब्ते में हैं। जो दूसरे हैं PSP है, फंक्शन मुस्लिम लीग है, PTI है, जो असेंबली में भी सिंध असेंबली में अपनी पार्लियामानी
पोजीशन रखते हैं। उन्होंने कल एक्टिविटीज की है, मुस्तफा कमाल पीसा पगारों के पास गया था, मुजफ्फर शाह जो है वो PTI के मेंबरान के पास गया था, और पीस पार्टी तो टोटल मुद्दों से राब्ते में है कि भाई क्योंकि इक़्तिदार उनके पास है सूबे में, वो कह रही है कि 12 सीटें हैं सिंध असेंबली में, तो 12 ही हम इक़्तिदार उनका कायम रहने वाला है लग रहा है। MQM की भी जो सूरत हाल है उसके बाद उनको शायद एक एज मिल जाए। और क्योंकि यहाँ पहले जो सिचुएशन जिसमें यह थी कि 12 सीट में से 8 सीट इस पार्टी के पास और 4 जो है मुत्तदा के पास, उससे पहले जो सेनेट था उसमें फंक्शन लीग के पास भी एक सीट थी, मुजफ्फर शाह यहाँ से हुआ था जो अभी फंक्शन लीग के तरफ से खड़ा है, तो उस सीट थी। मगर यहाँ जनरल सीट जो 7 हैं सिंध में, उसमें एक के लिए 168 का ऐवान है सिंध असेंबली में ना मेंबरान है, तो कम से कम 23 जो है वो वोट चाहिए। अब उनके पास क्या पता नहीं किसके पास कितने हैं, बादराबाद के पास कितने हैं और बियाज के पास कितने। पता होगा रफत साहब को पता होगा, ऑनियर कितनी करते हैं हमें नहीं पता, लेकिन सारी खबरें आपको पता होगा। मुझे इस बात को भी मलूज़ खातिर रखना पड़ेगा, मैं PTV पे बैठा हुआ हूँ, आप बैठे सिंध हुकूमत के बारे में बताइए। हमारे लिए सब बराबर है, साथ दे रहे हैं। जैसे दो ने एक बात कही कि 2 हिस्सों में, मैं ये कहूँगा MQM 7 हिस्सों में तकसीम हो गई है। अगर हम हकीकी को भी शामिल कर लेते हैं तो 7 हिस्सों में, और 7 हिस्सों का मतलब कुर्बानी तो पूरी हो चुकी है, और ये मिलने वाले मामला लगते नहीं है। जोड़ तोड़ तो बहुत बिहाइंड दी सीन हो रही होगी, इसमें फाइनेंशियल मामला अपनी जगह पर मौजूद है, कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि पैसे का बेदरीक इस्तेमाल जिस तरह सेनेट के वोट हासिल करने के लिए किया जाता है वो किसी और इलेक्शन में इतना नहीं होता, और फिर उसके फवायद भी अपनी जगह पर मौजूद है। यही शायद एक वजह भी है जो कामरान टसोरी साहब से रिलेटेड है, और उसके बाद ये तमाम मामले से रिलेटेड है, क्योंकि फाइनेंसेस को ही या फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कहा जा रहा था कि उनको ज्यादा स्ट्रेंथ। मैं टसोरी को इतना बड़ा फाइनेंसर नहीं मानूंगा, बात इसमें मामला कुछ और है। वो आप देख लें कि सबसे बड़ा मामला तो सीट का है जो दोनों के दरमियान आ रहा है, वो कहते हैं ये भी छोड़ दें वो भी छोड़ दें। इस तकसीम में जो इनका वोटर है ना वो बड़ा बेयकीनी का शिकार है, और इसमें सबसे ज्यादा स्मार्ट कार्ड पीपल्स पार्टी खेल रही है। आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी की बड़ी पुरस्कार खामोशी है इस सारे मामले में, इसीलिए वो बाएतमाद तरीके से कहते हैं कि 8 थी हमारे पास तो हमारे पास 12 भी आ सकती है, 10 भी आ सकती है, तो काम कर गए वो बहुत खामोश काम कर रहे हैं। खामोशी में आपको पता है कि क्या मामला होता है। डिलीवरेंस भी तो होना, पीपल्स पार्टी की ओवरऑल अगर चले, अब सेनेट के इलेक्शंस के लिए इतना सब कुछ हो रहा है, बाकी आने वाले और इलेक्शंस में होगा, लेकिन फिर उनकी डिलीवरेंस कहाँ चली जाती है? खामोशी तो उनकी वैसे भी बरकरार है। बिल्कुल नहीं, उनका देखो उनको 10 साल कंप्लीट होने वाले हैं। 5 साल उनकी शेड्यूल में गवर्नमेंट थी, सिंध में थी, और सिंध में उनको और 5 साल एक्स्ट्रा मिले थे, और इसमें कोई अपोजिशन भी नहीं थी, क्योंकि ये जो 5 साल इनके थे उसमें मुत्तहदा फंक्शन मुस्लिम लीग जो दूसरी पार्लियामेंट्री पार्टी है अपनी अंदरूनी बहरानों में थी, तो इनको इतनी टफ अपोजिशन भी नहीं थी, और काम करने के लिए इनको बहुत बड़ा मौके थे, प्लेटफॉर्म था, मगर उन्होंने किया नहीं। आप कराची टूल प्लाजा क्रॉस करो, आप लालकाना जाओ, आप सखर जाओ, आप जैकबाबाद में पुखास जाओ, घर में जाओ, अभी तक कितने रोज बच्चे के मौत हो रहे हैं, पीने के लिए पानी जो है वो लोगों को नहीं मिल रहा है। खुद कमीशन बनी है जो सिंध हाई कोर्ट की, उसने क्या रिपोर्टें जो है पेश की। इस वक्त सिंध के आधे सिंध में पानी पीने के लिए खुद असेंबली के अंदर इस पार्टी ने रेजोल्यूशन पेश किया है कि पानी नहीं है, लोगों को पीने के लिए नहीं मिल रहा है। तो इनका ये है, में ऐसा नहीं है कि ये सूरत हाल कभी भी बेहतर नहीं हुई थी, ऐसे मौके हैं, अगर आप वहाँ जाके लोगों से बात करें वो बाकायदा नाम लेते हैं कि किसने आगे हमारे ये हालात 10 साल बाद अगर NICVD के 2 यूनिट बना दिए, आप देखें कितनी भरपूर इश्तिहारी मुहिम है, और इस तरीके ये क्या 10 साल पहले नहीं हो सकते थे? ये सारे काम, सड़कें बनाना, अस्पताल बनाना, ये सब के इंतखाबात से कभी याद आता है, ये सब चीजें जो है इस वक्त याद आती है। आप कराची की सूरत हाल देख रहे हैं, हम तो इंटीरियर की बात कर रहे हैं, वो तो साल की कहानी है, लेकिन कराची जो कदरे बेहतर था उसे कहाँ डुबो रहे हैं? कराची की शक्ल भी अंदरूनी सिंध जैसी होती जा रही है, आप ये अंदाजा लगा लें। बातें हैं सिर्फ ये, अमलन किसी ने काम नहीं किया, पीपल्स पार्टी ने कोई तवज्जो नहीं दी। 2-3 सड़कें बना देना, यूनिवर्सिटी रोड जो नजर आने वाली सड़कें, ये अंदरूनी सड़कों पर आप चले जाएं, नॉर्थ आबाद बड़ा डेवलप इलाका हुआ करता था, आप जाके देखें ऐसा लगता है आप किसी पहाड़ी रेगिस्तान में आ गए हो। सबसे मैनेज वो इलाका था क्योंकि कैपिटल पहले वहाँ बनने वाला था। तो आप देखिए कि बदतरीन सड़कों की सूरत है, कचरे पर एक दूसरे पे इल्जाम। सिंध हुकूमत MQM कहती है, MQM कहती है फंड नहीं है। MQM भी इसमें जिम्मेदार है पूरी, क्योंकि MQM के पास इख्तिदार रहा है, बल्दियाती उमूर उनके पास रहे हैं, मगर उनकी तरफ से हमेशा ये भी रहा है कि जी हमें तो फंड्स ही नहीं मिले, हमें तो वो सपोर्ट ही नहीं मिली, हमें तो इख्तियारात ही नहीं मिले। इस पे बात करनी है याया साहब की कॉल के बाद। अस्सलाम वालेकुम। नुसरत, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक हूँ, बस ठीक हूँ, गला खराब है मेरा आज बदतरीन किस्म का, शहद का इस्तेमाल होगा।
बाद में। पहले तो आपके दोनों मेहमानों को सलाम है। मेरा एक तो आपका ये टिकट चल रहा था कि एमकेएम का कन्वीनर कौन होगा या किसके हिस्से में आएगी, तो मेरा तो अपना जाती ख्याल है कि शायद फारूक सत्तार के अपना फैसला हो। बहरहाल आपके जो पैनलिस्ट बैठे इनसे आज पूछ लेते हैं, फारूक सत्तार या खालिद मकबूल। बात हुई ना, मुझे ये है कि देखें आप इसमें सारी हॉर्स ट्रेडिंग का मामला चल रहा है, तो ये हमारे चांदी साहब बैठे हैं, बताएं कि ये जो अगर ये हॉर्स ट्रेडिंग होगी और आप किसी पार्टी के साथ बैठे हैं, किसी और को वोट दे रहे हैं, कितनी नाइंसाफी है, इसको रोकने के लिए क्या हो रहा है, इसके लिए कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, या वो ये पैसे चलेंगे या बस ये मेरा क्वेश्चन है। थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। पहले तो कन्वीनर के हवाले से बता दें क्या फैसला आने वाला है, क्या सोच है, क्या प्रोडिक्शन है? देखो जो आम है माहौल वो फारूक सत्तार के हक में ज्यादा है, मगर आदमी तादाद जो है राब्ता कमेटी के या जो ऑफिस बेरर हैं वो उस तरफ ज्यादा है। अब इलेक्शन कमीशन के है उनकी तरफ है, ठप्पा मानती है, किसकी साइन मानती है। इलेक्शन कमीशन में क्या चल रहा है रफत साहब? देखिए इलेक्शन कमीशन में तो मेरा ख्याल है फारूक सत्तार साहब ने तो उससे इनकार के चैलेंज कर दिया है, तो वो मेरे ख्याल में एक कदम और आगे चले गए। लेकिन मैं एक बात ये आपसे कहूंगा नुसरत कि एक बात इस सारे मामले में बहुत पॉजिटिव है। आप बताएं, आप तसव्वुर कर सकती थी इस शहर में कि आप ये इख्तिलाफ में बात करेंगी, पार्टी के अंदर इख्तिलाफ होगा, फिर वो लोग आपस में मिलेंगे भी, इलेक्शन कमीशन में दोनों मौजूद थे, दोनों मिले भी, एक दूसरे के खिलाफ बयानात भी देते हैं और रात 3 बजे फैसले हो रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आती, इतना उन्होंने मसरूफ रखा हुआ है कराची वालों को और मीडिया को। पहले भी रखते थे, लेकिन अब ज्यादा हो गया। रात 3 बजे भी उठ के हम एज ए रिपोर्टर कभी कोई 4 बजे तक हम बैठते थे, इनके शुरू वाले जो दौर था, तो ये साथियों को जगाते हैं, शुरू से जगाते हैं, ये शुरू से जगाते हैं और रात में ही होते हैं सारे काम, रात में होते हैं। आप ये अंदाजा लगा लें, तकारीर भी वही होती है, लेकिन चलें उससे अब आपकी जान छूटी हुई है, आपको वो ना उस तरह लाइव को प्राइवेट चैनल को कट करना पड़ता है, आप 7-7, 6-6 घंटे की नशरियात दिखाएं, उसके बाद ये खौफ देखिए इख्तिलाफ हो रहा है, इससे मुमकिन है कि एक हेल्दी पॉलिटिक्स इस शहर में मुतारिफ होगी। आने वाले इंतखाबात में सबसे अच्छी चीज ये होगी कि एक सेहतमंद सियासत अब शुरू होगी, चाहे ठीक है खरीदो फरोख्त भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन तशद्दुद का वो है। और सियासत कैसे होगी? ये रूठना बनाने की जो एक नई रविश शुरू हो गई है, एक पॉजिटिव बात है जो साहब ने जिक्र किया। पहले इख्तिलाफ रखता कोई अगर एमक्यू में अंदर रखता था तो यकीनन उसको सजा मिलती थी। अभी खुल के एक दूसरे से इख्तिलाफ कर रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा कारकुन के बीच में नहीं हो रहा है, तो शहर के अंदर कोई बड़े वाक़यात नहीं है, थोड़े बहुत क्रेडिट किसी और को जाता है, जिसको जाता है अगर ये नहीं होता, अगर हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इस तरह काम नहीं करती तो आज भी हड़ताल वैसे ही हो रही होती। पहिया जाम। एक आपके काले ने सवाल किया था जो खरीद फरोख्त होती है जी प्लीज, इस पे मैं समझता हूँ कि आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी होती है, शायद मैं बीच में फंसती रहूंगी, इट्स ओके। तो ये जो एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आपको कोई पार्टी नॉमिनेट करती है और उसके बाद आपको आप इलेक्शन में आते हो, वोट के जीत के असेंबली आते हो, बहुत सारे लोग, आप 10,000 वोट लेते हो, 50,000 लेते हो, 1 लाख लेते हो, उन लोगों के वोट आपके पास अमानत होते हैं। जब आपको 1 लाख लोग वोट देते हैं, आपको सिंध असेंबली में, पंजाब असेंबली में, KPK में, बलूचिस्तान देश है, जब सेनेट इलेक्शन होती है तो आपको एक वोट देना होता है, सेनेटर के लिए असेंबली मेंबर देता है। अब आपके जो बारी आती है तो आप जाके अपना वोट बेचो, बाजार में पैसे लो, या पार्टी किसी को खरीद करे। जब आप ये ट्रेंड डालते हो तो फिर आप जब वोटर के पास जाते हो मास में, तो आप क्या डिमांड करोगे कि भाई आपके वोट का मैं तकद्दुस रखूंगा, मैं असेंबली में जाऊंगा, मैं आपके वोट की इज्जत रखूंगा, धर्म रखूंगा, मैं आपके लिए जायज काम करूंगा। जब आप खुद जाके लेकिन देखिए चमत्कार बलूचिस्तान किसने रखी है, मतलब अगर सिंध के बारे में बात करें, 10 सालों में अगर कोई डिलीवर नहीं कर पाया, जब फेडरल में भी उनका असर रसूख था, जब भी नहीं कर पाए, तो अब क्या उम्मीद होगी? मतलब वोटर के ऊपर जिम्मेदारी है। बलूचिस्तान में हमारे पास कुछ सूबे ज्यादा होता है, बेचारे वोटर को कुछ ना कहें, वोटर बड़ा मासूम होता है। वोटर एक्चुअली अपनी ईमानदारी और अपनी मोहब्बत फैमिली सिस्टम से और कुछ नामों के साथ जोड़ के चल रहा है, जिससे उनको जाग जाने की जरूरत है बहुत। लेकिन जब वो असेंबली में आ जाएगा, जब वो वडेरे का रूप धार लेता है, कहा जाता है कि भाई नीचे से क़यादत आएगी, उसके बाद आप देखें पहली तरक्की होती है, एक लैंड क्रूजर गाड़ी आती है या वीवो आती है उसके पास,
اس کے بعد اس کے پیچھے گارڈ آتے ہیں، وہی آدمی جو کل تک اس طرح چل رہا ہوتا ہے. آپ بتائیں پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ لگایا ہے تو کمائیں گے بھی نا. یہ سوچ لے کر جب آئیں گے. بلوچستان اسمبلی میں کیا ہوا آپ کے سامنے ہے صورتحال، کیسے پانسا پلٹا ہے، پوری حکومت صاف ہو گئی اور کسی پہ الزام بھی نہیں آیا، باتیں ہوئی. اسی طرح آپ سے ہمیشہ بس انکوائری نہیں، مطلب سیاسی سے یہ کہہ لیں آپ اسٹیٹمنٹ کی بات کر لیں کہ اسٹیٹمنٹس دیتے رہے کہ کیا ہوا ہے، کس نے کیا ہے، کیوں کیا ہے، یہ ساری چیزیں 8 کے بجائے 10 چلی گئی نشستیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس، جس کے کبھی امکانات نظر آ رہے ہیں، تو اس میں بھی کوئی بات نہیں ہوگی. وہ کہیں گے بالکل نمبر گیم ہے، ہم نے حاصل کیا ہے اور لوگوں نے ہمیں سمجھا اس قابل سیاسی طور سے، تو ہمیں ووٹ دے دیا. یہ تو ابھی ہم سینیٹ الیکشنز کی بات کر رہے ہیں، آگے آنے والے دنوں میں ہم اپنے جنرل الیکشنز کو بھی فور کاسٹ کریں یا پریڈکٹ کریں. اگر کراچی یا سندھ میں صورتحال یہ ہے، 10 سال سے جو ہمارے اوپر ہیں ان کی صورتحال آپ کے سامنے، 8-10 سیٹیں ان کو مل جائیں گی، کون سا ڈفرنس ہماری زندگیوں میں کریٹ ہو جائے گا اور ہمارے پاس کون سی چوائس ہے ان کے علاوہ؟ حالات نظر آ رہے ہیں اس میں یہی کنڈیشن ہے، یہی لوگ کنٹینیو کریں گے. لوگ یہی ہیں، ایک پارٹی میں جاتے ہیں، کبھی دوسری پارٹی میں جاتے ہیں، کبھی تیسری پارٹی میں جاتے ہیں. لوگ یہ ہیں بیسیکلی ہمارے پاس کچھ لوگ ہیں جو الیکشن لڑ کے آتے ہیں. آپ ہم نہیں لڑ سکتے کیونکہ اتنی مہنگی بنا دی انہوں نے الیکشن پر کلاس نے کہ آپ کو کتنے کروڑ چاہیے آپ کو الیکشن. یہ سیاست سے زیادہ پروفیشنل گیم مجھے لگ رہا ہے کہ پروفیشنل ہو گیا ہے کہ یو انویسٹ منی اینڈ دین یو ارن منی. اس میں سیاست کا ہے، اس میں لوگ کا ہے، عوام کا ہے. جماعتوں نے بھی کراچی پہ توجہ نہیں دی. کراچی کے جو کہتے ہیں کہ ہم یہاں کے رہنے والے ہیں، ہم اس شہر کے وارث ہیں، انہوں نے توجہ نہیں دی. مسلم لیگ نے توجہ نہیں دی. تحریک انصاف باتیں تو کرتی ہے، ووٹ بینک کی طرف بھی ان کی نگاہ ہے، وہ کہتے ہیں کراچی آئیں گے، وہ انہوں نے بھی توجہ نہیں. توجہ کسی نے نہیں دی. سیٹ ہوتی ہے ان کے لیے، ڈیفینس کی ایک سیٹ ہوتی ہے، ڈیفینس کی ممکن ہے کہ اب لوگ وہ بھی خطرے میں آ سکتے ہیں، وہ بھی خطرے میں آ گئے. اس وقت ہمارے ساتھ لاہور سے سلمان غنی صاحب ہمارے سینئر صحافی موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سلمان صاحب. جی وعلیکم السلام. آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. اچھا، آپ کی آواز ہمیں صحیح آ رہی ہے. آئی ہوپ کہ میری آواز اب آپ تک پہنچے گی. ہم بات کریں سینیٹ الیکشنز کے حوالے سے اور کافی بہترین گفتگو یہاں ہمارے 2 سینئر جرنلسٹ موجود ہیں، انہوں نے فرمائی. آپ کا کیا ٹیک ہے اس پہ؟ کیا فور کاسٹ کر رہے ہیں، کیا فورسی کر رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ کے بھی میں گفتگو سن رہا تھا، آپ کے دونوں معزز مہمان بھی جو بات کر رہے تھے کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا، سب سے معتبر اور وفاق کی علامت یہ ادارہ ہے جس میں تمام صوبوں کو برابر کی نمائندگی ملتی ہے. اور یہ اچھی بات نہیں پاکستان میں ڈیموکریسی کے حوالے سے کہ اس میں جو ہارس ٹریڈنگ کے رجحانات سامنے آ رہے ہیں کہ کیا پاکستان کا یہ قانون ساز ادارے کے اندر ایسے لوگ جو رشوت کی بنیاد پر آ کر بیٹھیں گے وہ قوم کی کیا نمائندگی کریں گے. اور یہ لمحہ فکریہ ہے پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کے لیے. بدقسمتی یہ ہے کہ اس ادارے کے اندر سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کو آنا چاہیے جن کی قانون سازی کے حوالے سے سوچ اور اپروچ کلیئر ہو. لیکن بدقسمتی سے اب پولیٹیکل پارٹیز کے اندر وہ جو ایک ٹرم استعمال ہو رہی ہے ATM مشینیں، اور جب ATM مشینیں اس طرح کے اداروں کے اندر آئیں گی تو پھر پاکستان کے اندر جمہوریت کے مستقبل کے حوالے سے ہم کیا کہہ سکیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے کہ ان سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے بہت سارے خدشات تھے، خطرات تھے کہ شاید ہوں گے یا نہیں، لیکن یہ اچھی بات ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل فورسز نے ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے اور سینٹ کے انتخابات ہو رہے ہیں اور 52 لوگ نئے آئیں گے. ووٹرز کو اس وقت کوئی چیز سوچنے کی ضرورت ہے میرے خیال میں. اب ہم سب کو یا ووٹرز کو، چاہے آپ سینیٹ الیکشنز کی بات کریں اور بہت کم وقت ہی رہ گیا جنرل الیکشنز کی بھی ہو سکتا ہے ہم اسی سال میں بات کر رہے ہوں، تو کس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ایز اے ووٹر؟ دیکھیں، میرے خیال میں ایز اے ووٹر جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی کون سی پولیٹیکل فورس جو ہے موجودہ صورتحال کے اندر ذمہ داری کا ثبوت دے رہی ہے. اور جب ہم پاکستان کے اندر جمہوریت کے محفوظ اور بہترین مستقبل کی بات کرتے ہیں پھر یہ بنیادی ذمہ داری تو پولیٹیکل فورسز کی ہے کہ وہ کس طرح اس سارے معاملے کو آگے لے کے چلتے ہیں. کہ جیسے میں نے ابھی یہ بات کہی ہے کہ جو خطرات اور خدشات سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے وہ ختم ہوئے ہیں. پاکستان کی بڑی پولیٹیکل فورسز اس کے اندر اپنا رول ادا کر رہی ہیں اور اچھی بات ہوتی ہے کہ وہ زیادہ اچھے لوگ لے کے آتے تاکہ آپ کا سسٹم محفوظ ہوتا. پاکستان کے کوئی قانون جو ہے وہ سینٹ کی منظوری کے بغیر منظور نہیں ہوتا. لہٰذا سینٹ کے انتخابات ہوں گے، سینٹ کے انتخابات کے بعد عام انتخابات کی طرف پیشرفت ہوگی. جو خامیاں اس میں رہ گئی ہیں وہ عام انتخابات کے اندر پوری ہونی چاہیے. سلمان صاحب، لاہور میں بیٹھے بیٹھے جب آپ کراچی کی
लाहौर में बैठे हुए जब आप कराची की सूरत हाल देखते हैं, मुख्तसरन मैं आपसे जानना चाहूंगी MQM का क्या सियासी मुस्तकबिल आपको नजर आता है? हर वक्त आप बड़े लोगों ने फेसबुक पे मुख्तलिफ स्टेटस लगाए होते हैं कि कभी नाराज तो कभी खुश, कभी खुशी कभी गम और पता नहीं क्या क्या, तो आपको क्या लगता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि कराची के अवाम ने MQM पर एतमाद का इजहार किया था। MQM को अभी जो आपके मेहमान बात कर रहे थे, जो मेरे जर्नलिस्ट दोस्त हैं, कि कराची के मसाइल के हल की जमानत तो MQM को देनी चाहिए थी। MQM यहाँ पर बरसे इक़्तिदार रही है, MQM का डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट पे कंट्रोल रहा है, लेकिन जो चीज अब इस वक्त जो उनके हिस्से बखरे हुए हैं, ये कराची के अवाम को अब फैसला करना है। देखिए, उन्होंने तो इन पे एतमाद का इजहार किया, ये उनके एतमाद पर पूरा नहीं उतरे। और इस वक्त जो सूरत कराची के अंदर बनती नजर आ रही है कि पीपल्स पार्टी वहां से मुझे 10-11 नशिस्तें लेती नजर आ रही है। पंजाब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, कि मुस्लिम लीग नून के अंदर भी हिस्से बखरे करवाने के लिए बहुत सारी प्लानिंग की गई थी, वो प्लानिंग दरी की दरी रह गई है। और पंजाब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 11 से 12 नशिस्तें लेगी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड फॉर योर टाइम। जी रफत साहब, बड़े गौर से आप सुन रहे थे, बड़ी चीजें आपके दिल में जो आई हैं। दो बातों की तो उन्होंने भी तस्दीक कर दी और सलमान गनी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बहुत पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो रहा। चॉइस का है हमारे पास पढ़े लिखे लोगों की, आप मुझे बताइए तो कौन सी चॉइस है? पार्टियों के पास है, क्यों पार्टी पढ़े लिखे नहीं है? बहुत लोग हैं इस पार्टी के अंदर, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, वो भेज सकते हैं किसी भी बंदे अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अच्छे लोग अगर आ भी जाएंगे, पढ़े लिखे लोग आ भी जाएंगे, तो पढ़े लिखे लोग और बहुत अच्छे लोग मगर फैसले में आजाद नहीं है वो भी। यही बात ये बता दें कि वो पढ़ा लिखा आके कर क्या लेगा जब पीछे पार्टी किसी भी सोच के साथ आए, उसको अपने पार्टी के कायद की राय के बगैर आप अंदाजा लगा लें। मैं बड़ा सिंह की बात सबसे बड़ा ऐवान है जी, आपने रजा रब्बानी को भेजा था, ठीक है, आपको उन्होंने एक 18वीं तरमीमी शक्ल में एक आइन की जबरदस्त काम करके दिया। फॉर एग्जाम्पल, आपने उसकी जगह पे डॉक्टर आजम को भेज सकते हैं, मिसाल तौर आप किसी ऐसे बंदे को भेज सकते हैं, कामरान कसूरी को भेज सकती है, किसी अच्छे बंदे को भी भेज सकती है जो कराची से बैठ के कराची के इशूज पे। लेकिन आप ये बताइए ना, अच्छा बंदा XYZ चले, अभी आपको कोई पार्टी अपने साथ रख लेती है और कहती है जी बड़े पढ़े लिखे हैं, आपको सारा कुछ पता है, आप जाके सीट पे बैठे, क्या आप आजाद नहीं है? ये आजाद नहीं है ना, नुसरत फैसला ही नहीं कर सकते। आप देख लें, सारे MPs हकाल कर ले आए जाते हैं कि CM हाउस आ जाए, पार्टी कायद आने वाले हैं बात करने के लिए, चलें आपको ले जाके बिलावल हाउस बुला लिया जाता है। इसी तरह हर पार्टी में ये तहरीक इंसाफ में भी यही है, सब में यही है। उनकी वो पोजीशन नहीं है, लेकिन जिनकी पोजीशन है वो फैसले उनका एक ही आदमी करता है और वो फैसले नजर आ रहे हैं। और उसे आप सियासी हिकमत अमली कह लें, कुछ लोग उसे विजडम करार देते हैं, कुछ लोग उसे। और हमारे प्रोड्यूसर की विजडम इस वक्त ये है कि वो एक पैकेज दिखा रहे हैं, तो वो हम देखते हैं और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। पाकिस्तानी पार्लियामान के वाने बाला यानी कि सेनेट के इलेक्शन का इंतजार खत्म हुआ और मैदान सज चुका। जोड़ तोड़ का वक्त गुजर गया, अब नतीजे का हर वो खास मुंतजिर है जो कहीं न कहीं इस मामले से जुड़ा जरूर है। देखते हैं इसमें कौन हारता है और किसकी जीत होती है। कौन सी पार्टी अक्सरियत में आएगी, कौन अकलियत में चली जाएगी, किसका जोर चलेगा, किसका सफाया हो जाएगा, कुछ ही देर बाद सबके सामने आ जाएगा। ऐवान बाला जहां तमाम इकाइयों को यकसा नुमाइंदगी दी जाती है। अरकान सेनेट का इंतखाब कौमी असम्बली में पार्टी निशस्तों की बुनियाद पर होता है, ताहम कभी कभार अपसेट रिजल्ट भी देखने में आते हैं। सेनेट इलेक्शन आइन के आर्टिकल 59 के तहत करवाए जाते हैं। सेनेटर्स का इंतखाब पाकिस्तान की कौमी असम्बली और तमाम सूबाई असम्बलियों के अरकान अपने वोट के जरिए करते हैं। सेनेट के इलेक्शन हर 3 बरस बाद, जबकि हर सेनेटर की मुद्दत 6 साल के लिए होती है। पाकिस्तानी सेनेट के गुज़िश्ता इंतखाबात मार्च 2015 में हुए थे और इस बार होने वाले इलेक्शन में जहां कुछ चेहरे बदल जाएंगे, वहीं रिटायर होने वाले अरकान की जगह नए मेंबरान को मुंतखब भी किया जाएगा। इस इलेक्शन की खास बात ये भी है कि इनके नताइज आइंदा आम इंतखाबात की सिमत का तयन भी कर देंगे। मौजूदा चेयरमैन सेनेट मियां रजा रब्बानी भी उन्हीं सेनेटर्स में शामिल हैं जो इसी माह सुबकदोश हो जाएंगे। चेयरमैन सेनेट के अलावा सुबकदोश होने वाली अहम शख्सियात में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर एतजाज एहसन, फरहतुल्लाह बाबर समेत पीपल्स पार्टी के काफी सेनेटर्स शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून की बात की जाए तो उनके सेनेटर इसहाक डार, आसिफ सईद किरमानी, कामरान माइकल और सरदार जुल्फ़िकार खोसर समेत कई सेनेटर्स मार्च 2018 में रिटायर्ड होने जा रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सेनेटर हाफिज हमदुल्ला और सेनेटर तलहा महमूद समेत 5 में से 3, जबकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सेनेटर फरोग नसीम, सेनेटर ताहिर हुसैन मशहदी समेत 8 में से 4, अवामी नेशनल पार्टी के शाही सैयद और सेनेटर इलियास बिलोर समेत 6 में से 5,
जबकि पीटीआई के 7 में से एक सेनेटर आदम सवाती अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद सुबुकदोश हो जाएंगे। सेनेट के सुबुकदोश होने वाले सेनेटर अगरचे फाल तो नहीं रहेंगे, ताहम मुल्की कवानीन के मुताबिक वो ताहयात सेनेटर ही मुखातिब किए जाएंगे। हाँ जी, सेनेट इलेक्शन पे बात करते हैं, साथ साथ जज़ाकल्लाह गजाला साहिबा, जरा खांसी इतनी हुई, लॉन्ग वाली चाय आ गई है। खैर, हाँ, ये मेहमान को क्या रखना चाहिए? ये मेहमानों का गला खराब होगा तो फिर उनके लिए भी स्पेशल, लेकिन वैसे चाय आप लोगों के लिए जी हरदम आप लोगों के लिए लौंग वाली है तो इलायची वाली आ जाएगी, इलायची वाली आ जाएगी और अदरक वाली अलग अलग। खैर, ये जिस पॉइंट पे हम थे, और पॉइंट ये है हमारा कि क्या सीक्रेट वोट भी है और कौन किसको अंदर जाके वोट दे दे, किसका क्या जहन है इस वक्त, इतना इंतशार है, इतनी तकसीम है। ये जो हम खरीद फरोख्त बोलते कहते हैं ना, जो इल्जाम लगते हैं, ये इसीलिए लगते हैं कि आपने सेनेट का टिकट सबसे बड़ा ऐवान है और उसमें वोटर को आम नहीं है, किसी मोहल्ले से गली से नहीं आ रहा, आप इलेक्टेड असेंबली मेंबर है, तो उनका उन्होंने सीक्रेट रखा है। उसी में ही गड़बड़ है कि आप उसको ओपन करो, आपको बंदा है जिसको जो अच्छा समझ रहा है उसको वोट करेगा, उन्होंने सीक्रेट रखा। अब सीक्रेट अंदर जाके वो वोट किसको करता है कोई पता नहीं है। वैसे मुताबिक की बात हो रही थी हमसे पहले कि भाई एक फारूक सत्तार के साथ, एक बादराबाद के साथ है, एक पीआईबी के साथ है, 5-7 एमपीएस ऐसे हैं जो उधर जा रहे हैं और उन्हें खुद ख्वाजा इजहार ने सिंध असेंबली में हमारे सामने कैमरा में कहा था कि भाई आपस में मिल जाए वरना हम आजाद हैं, हम आजाद हैं। मतलब वो पीआईबी है, बी बन गई, आई बनना बाकी है। तो आप ये कहते हैं कि अब पार्लियामेंटेरियन का एक ग्रुप भी, इसीलिए मैं 7 हिस्से कह रहा हूँ ना। अगर आप हकीकी गिने तो एक हकीकी हो गई, पाकिस्तान हो गई, एमक्यूएम लंदन हो गई जो नजरियाती हो गई, उसके बाद इस तरह करते करते आप देखते हैं तो 7 हिस्से तो तकसीम हो चुके हैं। अब सब आजाद हैं, पंछी घूम रहे हैं, आपसे बात कुछ करेंगे। बिल्कुल, आप डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं मेरे साथ 22 लोग हैं, अच्छा वो ये कहते हैं कि हमारे 22 लोग अंदर जाके 43 तो कुल बंदे हैं, डब्बे से आपके 7 वोट निकले। बिल्कुल, नोबडी नोस कि किसने क्या वोट डाला। फंक्शन लीग के 9 वोट हैं सिंध असेंबली के अंदर, फंक्शन लीग का कैंडिडेट खड़ा है। कल वो 5 निकले डब्बे से, 7 वोट मुस्लिम लीग नवाज के पास है, कल उनके डब्बे से 4 वोट निकले। सबने उम्मीदवार खड़े किए। पीटीआई के 3 वोट हैं, वो तीनों ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है, तो उन तीनों में से कोई एक वोट निकले, क्या पता किसने किसको दिया। अब देखिए ना कौन किसको फैसिलिटेट करता है, किस तरीके से करता है, लेकिन सबसे बड़ा फैसिलिटेटर के तौर पे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो वो क्योंकि उनके पास हुकूमत है, वो हर लिहाज से फैसिलिटेट कर सकते हैं। और बलूचिस्तान में एक रोल जो नजर आया है वो सबको मालूम है। तो मुमकिन है कि ऐसा एक मौजूदा और भी हो सकता है। जैसे 10 सीटें तो मैं कह रहा हूँ, मुमकिन है कि 12 ले जाए। मौजूदा या साइलेंट प्लानिंग है? जब बलूचिस्तान प्लानिंग के बारे में कहा जाता है कि ये भी कहीं ना कहीं एक एमक्यूएम ने कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई बात कर रखी है, इस बातें हैं सब। ये हम लोग आए थे जिस तरह उधर करीब सुमरों में नजर आया था कोयटा में हुकूमत की जो हो रही थी, उसके बाद ये सारी काबीना जब आई वज़ीर हाउस में, फिर रज़ारी साहब ने उनसे खातर दवा उनकी हुई, उससे लग रहा था कुछ न कुछ मेहरबानी है, मामला तय पा गया है। कहा जाता है ना कुछ ना कुछ पर्दादारी है, तो पर्दादारी भी नहीं है। अब तो बात ओपन हो जाती है, ऐसा नहीं है। और जिनको मालूम होना चाहिए उन्हें मालूम होता है कि कहाँ जोड़ तोड़ हो रही है, ये सिटिंग कहाँ हो रही है, किसके साथ, किसको किससे मिलाया जा रहा है। एक एमपीएम नहीं है इस पार्टी का, वो आजाद कैंडिडेट आ जाएंगे, उसके बाद आपकी मर्जी है किसी भी शामिल हो जाओ पार्टी। और सेंटर में या पंजाब में अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर देखें, अगर मियां नवाज शरीफ ने जिस तरीके से एग्रेसिव तकरीरें की और जिस तरीके से उन्होंने मजमा जलसे किए बड़े बड़े, उसकी वजह से एक चीज कल रिजल्ट सामने आया पंजाब असेंबली वाला, वरना मुंतशिर होने में कोई देर नहीं लगती है बहुत ज्यादा। लेकिन ये फिलहाल यकजा किया हुआ है मुस्लिम लीग नून ने अपने लोगों को, चाहे वो आजाद हैसियत में भी वोट उन्हें ही देंगे। अभी तक तो यही सिचुएशन है। और बहुत सारे जो बहरान दरमियान में आया उसको उन्होंने काबू पा लिया। इस तरह के एक धरने के बाद जो एक बहरान आया था उसको भी काबू पा लिया उन्होंने। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ तो सूरत हाल स्ट्रैटेजी उनकी बेहतर है, और लेकिन यहाँ पंजी आजाद गेम के अलावा काम कर रहे हैं। के अंदर भी हो सकता है, वहाँ भी बड़ी खिचड़ी है जो वहाँ हुक्मरान जमात है उसके अंदर भी एक बड़े इख्तलाफात चल रहे हैं कि भाई कुछ लोग हैं जो नवाजे गए, कुछ नहीं गए, क्या पता वहाँ के डब्बे
बातें भी उसे कोई एंटी ज्यादा निकल आए। आने वाले दिनों में देखते हैं। समीउल-हक से जो इत्तेहाद किया है तहरीक इंसाफ ने, उसमें भी बड़ी बातें हो रही हैं। जो आज मौजूदा हालात के तनाजुर में, जो आलमी हालत के तनाजुर में जो बातें हो रही हैं, उसमें मौलाना समीउल-हक का जो रोल वहाँ पर है, जो उन्हें पैसे उनके मदरसे को दिए गए। साहब, अब मेरे ख्याल में हमें यहाँ पर इसको क्लोज करना पड़ेगा, लेकिन आप लोगों से डिस्कशन इतनी इंटरेस्टिंग थी कि हम इसे आगे तक लेके जा सकते थे और बहुत सी चीजें हमें और जानने को मिल जाती। जैसे मैंने कहा, सहाफी हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हें वो भी पता है कि कल क्या होने वाला है, एटलीस्ट क्या चल रहा है वो सब पता है। अब बताएं कितना, वो इनके ऊपर है। थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन। एक ब्रेक, उसके बाद हम वापस आते हैं। चीन के गेट से हम सरजमीन पाक में दाखिल हो रहे हैं। काजी राहदारी पे एक दफा फिर चलने लगे। जगह बनाई जा रही है जो दुनिया की तीसरी सबसे गहरी मंजिल है। जजीरा 50 साल पहले भी नमूदार हुआ था और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये समंदर घुट होता गया। हेपेटाइटिस सी पे प्रिवेंटिव पे किया, हॉस्पिटल वेस्ट हमने बेहतर की है। क्या मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं जो इस वक्त दुनिया फेस कर रही है? इर्द गिर्द शहरों के पूरे रिंग्स बनने चाहिए फॉरेस्ट्री के। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जी जो बंदूक का लाइसेंस है, जो ड्राइविंग लाइसेंस है और जो फूड का लाइसेंस है, ये तमाम एक जैसे हैं। पेशेंट को या हामला खातून को पहले 3 महीने के अंदर अंदर डॉक्टर को जरूर मिलना चाहिए। क्या हालात हैं हमारे देहात को लेके? साफ पानी के बहुत बुरे हालात जी। हमारा जो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट कायम हुआ हुआ है चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर, जो कि 2009 से काम कर रहा है। तो मील स्प्लिट करना, उसका भी कोई फायदा है? टुकड़ों में खाना चाहिए। कॉलेज किसी को होता है तो उसमें चांस होता है कि 25% वो लोग हैं जिनको ब्लड प्रेशर है। हमने बहुत वक्त भी जाया किया, बहुत नुकसान भी हुआ और पॉपुलेशन भी बढ़ा बैठे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। अहम खबरों के साथ मैं हूं मनाजिर हुसैन। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में शरीफ खानदान के खिलाफ नैब रेफरेंसेस की समाअत। साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर अदालत में पेश। ज़िमनी रेफरेंस के गवाहों पर वकील सफाई ख्वाजा मोहम्मद हारिस की जिरह जारी। इमरान खान, रोज नया इल्जाम लगाने का मजाक बंद करें। इमरान के इल्जामात पर चीफ जस्टिस से फुल बेंच तश्कील देने की दरख्वास्त है। वजीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ। जिस तरह लाहौर में सेनेट इंतखाबात का नतीजा आया, कल के नताइज भी ऐसे ही आएंगे। अवाम के सामने बार बार झूठ बोलने के बाद अब इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में भी मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। वजीर ममलिकत इत्तलात मरियम औरंगजेब की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान को फाइनेंशियल टास्क फोर्स ने ब्लैक लिस्ट नहीं किया। पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में जून तक शामिल किया जाएगा। ग्रे लिस्ट में आने से किसी किस्म की पाबंदी आयद नहीं होगी। मुशीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान।
सरकारी हज स्कीम के तहत 50% कोटे पर खुरा अंदाजी 87,813 कामयाब आजमीन का ऐलान। दरख्वास्त गुजारों को नताइज की इत्तला SMS के जरिए दी जाएगी। नीलम झेलम मंसूबा बिजली की पैदावार के लिए तैयार। मरकजी सुरंग में पानी की भराई का आगाज, मार्च के आखिर तक बिजली की पैदावार शुरू। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत बालाई पंजाब में वक्फे वक्फे से बारिश, मौसम खुशगवार। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, फाटा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। रूस का तबाहकुन जौहरी हथियार तैयार करने का ऐलान। जदीद तरीन एटमी मिसाइल दुनिया में कहीं भी मार कर सकते हैं। अमरीकी दिफाई निज़ाम भी नहीं रोक सकेगा, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन। बरतानिया समेत यूरोप में सर्दी की शदीद लहर। शदीद बर्फबारी और हादसात से हलाकत की तादाद 50 हो गई। सैकड़ों परवाजें मनसूख, निजाम जिंदगी शदीद मुतासिर। और पाकिस्तान सुपर लीग 3 शारजा में पेशावर ज़ल्बी ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स को 5 विकेटों से हरा दिया। कप्तान डैरिन समी की जारहाना बैटिंग मैन ऑफ द मैच करार। आज मजीद 2 मैच खेले जाएंगे। टूर्नामेंट PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। अहम खबरों में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए। आईने पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हुकूक की जमानत दी गई है, जिसके मुताबिक ऐसे तमाम कवानीन या वो रस्म रिवाज जिन्हें कानून की पुष्ट पनाही हासिल हो, कालदम करार पाएंगे अगर वो बुनियादी इंसानी हुकूक की नफी करते हों। मेरी आवाज के साथ असमत आशवानी। हम लोगों को उनके जो इश्यूज होते हैं वो मिल बैठ के रिजॉल्व करवाने की कोशिश करते हैं। चेंज को रेजिस्टेंस जरूर होती है। शहरों के साथ साथ देहात की औरत के मसाइल जो हैं वो ज्यादा हैं। दही औरत जो है उसके बहुत सारे मसाइल हैं। वो लोग नशे के लिए वल्नरेबल होते हैं जिनकी शख्सियत में कुछ प्रॉब्लम हो। पर एक एक सिगरेट करते करते मैं यहाँ तक आ गया। बेसिकली डिजीज इनकी बुरी है, ये खुद अच्छे लोग हैं। ये उम्रा ज़ायरीन है, इनका अदब और एहतराम है। सर बेशक हम मानते हैं, हम इधर गैर कानूनी खड़े। अगर अवाम हमारे साथ ताउन करें और दुकानदार जो हैं ये अपनी दुकानों के बाहर ये देखें ना, रेडियो ना लगने दें कि ये मुहाफ़िज़ है आपके शहर के वतन की। आजादी अफकार से है
उनकी तबाही, रखते नहीं जो फिक्र व तदब्बुर का सलीका। ओ फिक्र अगर काम तो आजादी अफकार, इंसान को हैवान बनाने का तरीका। एक इस्लामी जमहूरी ममलिकत, मुसलमान एक उम्मत, एक कौम, एक सोच, एक फिक्र, एक आजाद रियासत। आवाम की राय हुकूमत के इक़्तिदार की बुनियाद होगी। ये राय आम इंतखाबात के जरिए जाहिर की जाएगी, जो मुसावी राय दहिंदगी की बुनियाद पर होंगे और जो खुफिया वोट या इसके मुसावी किसी दूसरे आजादाना तरीके राय दहिंदगी के मुताबिक अमल में आएंगे। याद रखना, आगे बढ़ने के लिए तुम्हें जो मजबूती चाहिए सब यहाँ है। जब कोई डराए तो उसका सामना करने की मजबूती, और जब कोई रोके तो बढ़ते जाने की मजबूती, सब यहाँ है। लाइफ बॉय शैम्पू का मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला बनाएगा इसके बालों को मजबूत और आपकी हर बात इसके इरादों को। लाइफ बॉय शैम्पू, बढ़ो मजबूती से। ब्यूटीफुल सॉन्ग, और सॉन्ग सुन के आप समझ ही गए होंगे, और बल्कि हमारे सेट का और नज़ारा देखेंगे तो और समझ में आ जाएगी। ये खूबसूरत शॉल या चादर जो आज मेरे पास है, इस पे काम बलोचिस्तान। वज़ीर मुमलिकत इत्तलाआत मरियम औरंगजेब ने आपसे कुछ देर पहले एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की। आइए आपसे शेयर करते हैं। इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन से बाहर रखने का, वो लीगल कर दिया गया है हॉस्टल। लेकिन फिर भी अल्लाह के फजल करम से आपने कल देखा कि जिस तरह मुस्लिम लीग नून का सेनेटर जिसने वोट दिए, इसी तरह 3 मार्च को भी इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून के जो सेनेटर्स होंगे वो जिस तरह वोट, सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो हाथ खड़े करके सेनेट के इलेक्शन के वोट दे सकती है। और मैं समझती हूँ कि हर इलेक्शन शो ऑफ हैंड्स के साथ होना चाहिए, जिससे बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी हो। जब इंसान झूठ बोलता है और एक के बाद एक झूठ बोलता है, उसके बाद आप वो पिटिशन जो सुप्रीम कोर्ट में खुद लेकर जाते हैं उसके अंदर झूठ जमा कराते हैं, तो उसका जवाब कौन देगा? आज 3 दिन से ट्वीट नहीं आ रही कि मेरे एनओसी असली है कि मेरे एनओसी नकली है, उनके ऊपर भी जवाब आए। और दूसरी तरफ एक दिन में 3-3 पेशियां, एक दिन में 2-2 पेशियां, एक दिन में 6-6 ज़िमनी रेफरेंसेस। मतलब ये आप सब देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है। दूसरी तरफ आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर
इमरान साहब जाली दस्तावेज जमा कराते हैं अपने घर पे और उनको हफ्तों की मोहलत दे दी जाती है। एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाली रिपोर्ट जमा कराना पूरे पाकिस्तान की करप्शन का ठेका वो उठा रहा है जिसका अपना जालसाजी खत्म नहीं हो रही। आप देखें कि अपने घर का जो दरखास्त खुद सुप्रीम कोर्ट लेके गए उसमें अपने घर का जो NOC है वो चल रहा है। ये जरूर देखा जाए कि तारीख में जब जब इसके अंदर नाम आए हैं पीपल्स पार्टी का दौर हो तो ब्लैक लिस्ट में कितनी दफा हम आए और उसके बाद हम ग्रे लिस्ट में कब आए, ये हमने ही 2015 में इसको इसमें से भी निकाला था। वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू आप मुलाहिज़ा कर रहे थे। PTV न्यूज़ से ये थी ताज़ा तरीन। अच्छी स्टूडेंट रही होगी, मुझे लग रहा है ऐसा, है ना? बड़ी पढ़ाकू सी लग रही हैं ये दोनों। और जिस तरह यूनिवर्सिटीज में पढ़ रही हैं और एडमिशन जहाँ जहाँ हो गया है इनका, तो वो तो क्या छा गए आप लोग। और इसके साथ साथ अपनी जबान में भी बात करती हैं, अंग्रेजी भी बोलती हैं, उर्दू भी बोलती हैं और बलोची भी बोलते हैं। वेरी नाइस। एंड वी हैव हमारे बड़े उस्ताद यहाँ पर मौजूद हैं। हम इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं निसार अहमद बलोच साहब, बेंजो प्लेयर हैं। अस्सलाम वालेकुम। और अपने होने का एहसास वो दिला ही रहे हैं। वाह 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 जी वाह। और हमारे साथ मौजूद हैं बड़े ही प्यारे सिंगर, उनके साथ इस्माइल मोहताज साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और हमारे म्यूजिशियंस कहीं लेफ्ट आउट फील न करें तो फिलिप्स हमेशा की तरह हमारे साथ हैं और हमारे भाई भी हमारे साथ मौजूद है, खुर्शीद भाई। आज के दिन के हवाले से पहले मैं चाहती हूँ कि आप दोनों से कुछ कमेंट ले लिया जाए। ये दिन मनाया जाता है और मेरे ख्याल में इस तरह के दिन मनाने से आपको एक दूसरे के बारे में और जानने का मौका मिलता है। तो आज के दिन का फोकस आप लोगों की तरफ से क्या होता है? देखिए, दुनिया की जितनी भी तहजीबें हैं उन सबका अपना एक तारीखी हवाला होता है, अपना एक कल्चर होता है और उस कल्चर में उनकी जिंदगी के तमाम चीजें जो होती हैं समूही होती हैं। तो बलोच जो है एक बहुत ही बहादुर कौम है, लेकिन बलोच को सही तरीके से मेरा ख्याल है एक्सप्लोर नहीं किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक बलोच को बलोच नहीं कहते, बलोच को बलोची कहते हैं, जो कि सरासर गलत है। क्योंकि सिंधी की जबान सिंधी है, वो कौम भी सिंधी है। पंजाबी की जबान पंजाबी है, वो कौम भी पंजाबी। बंगाली की जबान बंगाली है, वो कौम भी बंगाली है। लेकिन बलोच की सिर्फ जबान बलोची है, तहजीब, तमद्दुन, तारीख वो बलोची है। वो खुद बलोची नहीं है, वो बलोच है। तो अब तक, और मैं ये बात हर प्लेटफॉर्म पर पता नहीं साल से कह रहा हूँ। नहीं, मैंने तो ये अडॉप्ट कर लिया। मैं बलोची नहीं कहती हूँ, मैं बलोच कहती हूँ। और बड़े बड़े लीडरों से मैंने लड़ाइयाँ झगड़े किए हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो बलोच को बलोच कहते हैं। अक्सर लोग कहते हैं हम बलोचियों के लिए करें, बलोचियों को नहीं चाहिए तुम्हारे लिए, तुम करो किसी और। तो एक तो ये, तो उसकी वजह से यही थी कि हमें अब सही तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया। तो आज हमारे बारे में इस छोटी सी नशिस्त में कुछ चीजें आप लोगों से जानेंगे। वापस आपकी तरफ आते हैं। एक पैकेज हमारी टीम की जानिब से आज की इस महफिल के लिए और आप सबकी डेडिकेशन के लिए, इस दिन के लिए ये पैकेज मुलाहिजा फरमाइए। फिर वापस आते हैं और अपने तौर से आप लोगों ने कोई ना कोई ऐसी चीज बतानी है जो हमें एक्साइट करे या हमारे लिए बड़ी मजेदार सी हो। ठीक है, आफ्टर दिस पैकेज। दुनिया में कौमें अपनी ज़बान और सकाफत की बुनियाद पर पहचानी जाती हैं। यूं तो पाकिस्तान में रंगारंग सकाफती अक्काइयाँ मौजूद हैं जो मुल्क की सकाफत को बाहम मुकम्मल करती हैं। उनमें एक अहम और मुनफरिद अक्काई बलोच सकाफत की है, जिसका इजहार हर साल 2 मार्च को वसी पैमाने पर किया जाता है। बलोच सकाफत जुला लिबास, लंबी और चौड़ी शलवारें और हाथ में तलवार एक रिवायती बलोच मर्द, जबकि भारी मगर खूबसूरत दस्तकारी से कशीदा किए हुए लिबास एक रिवायती बलोच औरत की तस्वीर पेश करती हैं। ये कल्चर इनकी हजारों साल उनके साथ रहता है। अगर आज बलोच की खवातीन को आप देखें जो वो लिबास पहनते हैं, वो मेरे ख्याल से इस पूरी खित्ते में, बल्कि पूरे एशिया में, पूरी दुनिया में
اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اسلامی پوائنٹ آف ویو اگر آپ دیکھیں تو عین اسلام کے مطابق ہے. ان کی لباس اسلامی لباس ہے اور ان کی جو مردوں کا جو پگ ہوتا ہے باندھتے ہیں یا جو لباس بڑے شلوار پہنتے ہیں تو یقین مانے کہ ان کی پوری ستر ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے لباس پر اپنی زبان پر اپنی کلچر پر فخر کرتے ہیں. اسی طرح کھجور نما درخت کے پتوں سے بنی ہوئی جھونپڑی گدان، مخصوص قسم کے برتن اور جوتے بھی بلوچ ثقافت کے خوبصورت رنگ ہیں. بلوچی دیوان مہمانداری، دلیری، عہد وفا، پناہ گیری اور اپنی سرزمین سے محبت بلوچ ثقافت کے وہ شاندار پہلو ہیں جو اسے ایک منفرد حیثیت بخشتے ہیں اور ہزاروں سال قبل بلوچ ثقافت کا حصہ بنے ہوئے ہیں. بلوچ کو جنگ میں شکست دینا ناممکن اور محبت سے جیتنا اس کی قدیم روایت کا حصہ ہے. جی آپ نے دیکھا، اور یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو ہم سب نے سنی پڑھی یا جس کو ہم ریسرچ کر لیتے ہیں. لیکن آج جو لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں گزشتہ 8 سالوں سے یہی لوگ ہیں جنہوں نے اس دن کا انعقاد کیا، اس کا آغاز کیا. ہر 2 تاریخ کو دن منایا جاتا ہے اور جس طرح میں نے کہا کہ جب ہم پیکج سے واپس آئیں گے تو آپ لوگ ہمیں اپنے ہی بارے میں کچھ ایسی چیزیں بتائیں گے جو ہمارے لیے نئی بھی ہو سکتی ہیں، انٹرسٹنگ بھی ہو سکتی ہیں. جیسے آپ نے کہا بلوچی کہنا چھوڑ دیں، بلوچ کو بلوچ کہیں، زبان کو بلوچی کہیں. جی مہالکا آپ بتائیے کچھ. میری سب سے جو انٹرسٹنگ بات ہے یہاں ہماری شادی جو ہوتی ہے اس میں سارا خرچہ وہ مردوں پر آتا ہے. مطلب ایک ہمارے یہاں بیٹی جو ہے، بیٹی کی جو مائیں ہیں وہ فخر سے مطلب ڈیمانڈ کرتی ہے بیٹے کی ماں سے، اور جہیز کا کوئی سسٹم نہیں، تصور ہی نہیں ہے ہمارے یہاں. اگر بیٹا خرچہ مطلب یہاں تک کہ جو بیٹی کے گھر میں مہمان آتے ہیں ان کا خرچہ بھی لڑکا ہی اٹھاتا ہے. اوکے. تو یہ میرے لیے وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے لڑکا کہ میرے اس شادی میں کسی اور کو خرچہ کرنا پڑے، وہ اس کو اپنی بے عزتی سمجھتا ہے. کیا بات. اور لڑکے کی بھی ہیلپ کرنے کے لیے شاید بجار ایک رسم ہے، بجار جو اس کے آس پڑوس کے لوگ یا اس کے خاندان کے لوگ لڑکے کی ہیلپ کرنے کے لیے اسے دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی شادی کا خرچہ اٹھا سکے. ہمارے یہاں دیکھیے باقی جتنے لوگ ہیں نا ان میں یہ ہے کہ شادی کے موقع پہ لفافہ دیا جاتا ہے. جی. ہمارے یہاں موت کے وقت میں بھی لفافہ دیا جاتا ہے. اچھا. ہمارے یہاں مریض کو دیکھنے کے لیے اسپتال جب جاتے ہیں یا اس کی عدد کرتے ہیں تب بھی لفافہ دیا جاتا ہے. وہ اس کی ساری بنیادی وجہ، اور وہ پتہ بھی نہیں چلتا. میت کا تو یہ ہے کہ وہ بیٹھے جس بھی ہم اس کو جہاں وہ بیٹھتے ہیں دیوان ہم کہتے ہیں اس کو، اس پہ وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور جب دعا وغیرہ کر کے فاتحہ پڑھ کے جب وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو اس کے نیچے چپ چاپ وہ پیسے رکھ جاتے ہیں جس اپنی حیثیت کے مطابق. وہ شام کو وہ سارے پیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں. اگر وہ غریب ہیں تو ان کے ذاتی استعمال میں آ جاتے ہیں، اور اگر وہ سب کو دیا جاتا ہے، یہ نہیں کہ غریب اور وہ امیر ہیں ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں تو پھر اس پیسے کو وہ خیرات کر دیتے ہیں. یا جیسے بھی یہ دیکھیے ہمارے یہاں جس طرح ہوتا ہے کہ بعد میں پھر فاتحہ ہوتی ہے، باقی چیزیں ہوتی ہیں یا جو بھی ارینجمنٹ ہوتے ہیں تو گھر والوں پہ یہ ایک تو ان کا ویسے ہی دکھ کا ماحول ہوتا ہے اور پھر اوپر سے یہ تمام چیزیں بھی ہوتی ہیں. 3 دن 4 دن تک باقاعدہ کھانا بنا کر کے ان کے یہاں بھیجا جاتا ہے. اور یہ لڑکیوں کے حوالے سے بھی جیسے کہ آپ نے بتایا کہ بیٹی کا ہونا پھر کسی کو بھی جیسے ویسے بھی نہیں فیل ہونا چاہیے، لیکن ان تمام معاملات کی وجہ سے کہ جی شادی ہوگی یا آگے کس طرح سے اس کے معاملات ہوں گے. ہمارے یہاں میں یہی کہہ رہی ہوں کہ بیٹی کی جو ماں ہوتی ہے وہ فخر سے ڈیمانڈ کرتی ہے اور وہ مطلب ایک نخرہ ہوتا ہے ماؤں میں. مطلب سوچ یہ ہوتی ہے کہ جب جس نے بیٹی دے دی اس کو تو سب کچھ دے دیا نا، اب اس پہ آپ کیوں برڈن ڈالیں کسی طرح کا. مین مقصد یہ. اچھا جی، اب آپ لوگوں کی باری، ذرا بتائیں آپ لوگ کیا انٹرسٹنگ فیل آپ لوگوں کو ہوتی ہے کیونکہ آپ اس معاشرے میں جہاں رہ رہے ہیں. ایک تو ویسے ہی ہماری سٹی جو ہے وہ بڑی ڈائیورس ہے، یہاں ہر طرح کے لوگ ہیں، اور پھر آپ لوگ تو پلے بڑے یہاں پر ہیں، یہاں کی یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم یو آر لوکنگ انٹو یور فیملی. کیا چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو انٹرسٹ کرتی ہیں؟ سب سے پہلے جو ہماری لینگویج ہے نا، بلوچی لینگویج، وہ بہت مشکل ہے انٹرپریٹ کرنا. اگر میں بلوچی میں بات کروں گی تو جیسے پنجابی ہے یو کین گیس کہ کیا بات ہو رہی ہے، سندھی بھی آپ تھوڑے تھوڑے ورڈ سمجھ جاتے ہو. بلوچی ایسی لینگویج ہے کہ آپ کو بالکل بھی سمجھ نہیں آئے گا کہ آپ اگلا بندہ کیا بول رہا ہے، اور جینڈر نیوٹرل لینگویج ہے. مطلب بلوچی میں دس از تو مطلب آپ، اب وہ آپ ہو تم ہو، دیر از نو ڈگری آف ریسپیکٹ. ہماری زبان انگریزی بہت ملتی ہے، ہماری زبان میں انگ اتنا ہے
हमारी जबान में इंग इतना है, हाँ, इंग्लिश में जितने इंग है उतने हमारी जबान में। और तो किसी आप बाहर किसी आप क्या कहते हैं ऐसे बंदे से बात कर रहे होंगे ना जिससे आपने हमेशा से बलोची में बात की है, आप उससे उर्दू में नहीं बात कर सकते क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा कि तो आप बोलूं क्या बोलूं, मतलब अगर आपसे छोटा भी होगा ना आपको इतना वियर्ड लगेगा। फिर भी बेटा इज्जत के लिए शुमा का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, इज्जतदार। एक कॉलर है हमारे साथ, उसके बाद माशाल्लाह आप हमें बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम मिसेस सूफी। वालेकुम अस्सलाम। नुसरत बेटा, सबसे पहले तो आपके बहुत ही काबिल एहतराम तमाम मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम। और बहुत खूबसूरत शो है और बड़ी दो खूबसूरत रिवायात का इन्होंने जिक्र किया, जैसे आपकी टैलेंट भी बोल रही है गयूर और बहादुर बलोच, बलोची नहीं कहेंगे बलोच, और कि जब लड़की की शादी होती है तो तमाम खर्चा जो है वो मर्द ही बर्दाश्त करता है, विच इज अ वेरी गुड ट्रेडिशन। सकाफत या कल्चर का ताल्लुक बेटा सरजमीन से होता है, खित्ते से होता है और इसका मजहब से कोई लेना देना नहीं होता, ये इंसानियत की रूह में होती है। और बलोच सकाफत तो बहुत खूबसूरत है और इसके लिए यही कहेंगे, कहती है ये राह अमल, आओ हम सब साथ चले, मुश्किल हो या आसानी हाथ में हाथ डाले हाथ चले, धड़कन है पंजाब अगर दिल अपना मेहरान है, सूरज है सरहद की जमीन तो चंद पाकिस्तान है। क्या बात है, हमारे बलोचिस्तान के लिए सबसे पहले माय हम्बल ओपिनियन, वहाँ की सरजमीन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सड़कें चाहिए, हमारी आर्मी का होना वहाँ बहुत जरूरी है और उसके बाद तालीम। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपकी आवाज भी कटना शुरू हो गई है मिसेस सूफी। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बेहतरीन इनपुट रहा और एक चीज आपने हमें बतानी है माशाल्लाह अभी कोई, और फिर हम आ जाते हैं आपके गाने की तरफ। आई एम अ वेरी कल्चर लविंग पर्सन, तो आई रियली लाइक कि हमारा कल्चर कितना ब्राइट है, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट एम्ब्रॉयडरीज हैं, जैसे हमारे पास बहुत दो तीन की मैं नाम भी ले लूँ, मुर्ग पांच है और आरिफ है चादर, हर चीज को उन्होंने रिन्यू भी किया हुआ है, कुछ एम्ब्रॉयडरीज नहीं आई हैं। और फिर आप लोगों ने कभी ये ट्राई किया जिस तरह की एम्ब्रॉयडरी है? नहीं, हमने कभी ट्राई तो नहीं किया लेकिन हमें पहनते हैं और हमें बहुत पसंद है। जो अंदाजा है कि ये कैसे होता होगा। जी बिल्कुल, डिफरेंट होते हैं और धागे होते हैं, कुछ में डिफरेंट पैटर्न डिफरेंट होते हैं। जैसे अब मैं जो जूते पहनी हूँ ये भी बलोची जूते हैं, इनको सरतल कहा जाता है, ये भी हैंडमेड है। जी, सरतल कहाँ से मिलते हैं? सरतल ये जो है ना केश वहाँ पे लोग सीते हैं, ये बस बड़े अच्छे भाई, ये मिले तो मैं जरूर अपने शो में पहन के आऊंगी। इनके लिए तोहफतन जरूर इंतजाम करके करें भाई, बड़े ब्यूटीफुल लग रहे हैं मुझे ये। और कल्चरल चीजें जो हमारी अपनी है उसकी तो आप देखें मुल्क से बाहर मैं आपको एक बड़े का किस्सा सुना मिलती है। आपने मुझे किस्सा बताना है लेकिन हमारे क्योंकि सिंगर सिंगर तो ले लें, फिर मैं आपको बताता हूँ हमारे जूतों के बारे में। जूतों के बारे में एक किस्सा, मगर इस गाने के बाद। जी प्लीज। जी, मैं बल्कि माँ बलूची तो इशमती तमाम राजारा मर्ची दो दो रबे दगे रोचे पुल्ले दुरसे होती अजीज अर्च अंदो दमगा अर्च दुनिया अर्च कुंडिया आना मैं दो रबे दगे जो उसने मर्चियाना मुबारकबाद पेश करी। और मनी ख्यालगुशी के अगर बलूची सकाफत बीबी और बाबा फैज जो उसने ना जहीरोक बबी थोड़ा प्रोग्राम है था जो उसने ना मजा चुई कमो करके। जी फैज मोहम्मद बलोच बाबा है, सिंगर है बलोचों का। बस सही है, सुनते हैं अब आपको। लेजेंड सिंगर है हमारा। लेलाओ लेलम बेहतर बरा सेला मिजाजिए लेला लेलाओ लेलम बेहतर बरा सेला मिजाजिए लेला मिजाजिए लेला मिजाजिए लेला।
Kosuto dirko zaira mana kurko zaira mana kurko Kosuto dirko zaira mana kurko mijaziye lela lela o lela ma byatar bara lela mijaziye lela mijaziye lela Dar mulki makran mein mulki mijaziye lela Idakar mulki makran mein mulki lelao jani lelao allade lelao mani jana lelao lela ma byatara bara sela mijaziye lela क्या बात है। और ये बड़ा फेमस गाना है जो आई थिंक सबने ही सुना हुआ होगा। बहुत मशहूर। हाँ, और इसका मतलब क्या है इसकी ये लाइन का आज जरा पता भी चल जाए। वैसे तो लैला के लिए गाया जा रहा है इतना लैला महबूबा को भी कहते हैं। हाँ। अनवर भाई से बेहतर इसका एक्सप्लेन कोई कर नहीं सकता है। अनवर साहब आपने हमें किस्सा भी सुनाना है तो ये भी एक्सप्लेन कर दीजिए। ये ऐसा है कि फैजमान बलोच हमारे एक लेजेंड सिंगर थे, बहुत बड़े, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। और उनको इस तरफ लाने में मेरे वालिद साहब का बहुत बड़ा कैरेक्टर है। मेरे मामू जान का सबसे बड़ा कैरेक्टर है, तो रेडियो पे वही लेके गए थे सबसे पहले। और उन्होंने जो कारनामे अंजाम दिए वो तो पूरी दुनिया से नुमाया। तो उन्होंने ये गाया था और बड़ा अच्छा गाया था। इसमें वो अपनी महबूबा को कह रहा है, मिजाज हम कहते हैं नखरे को। तो वो कहता है कि तू नखरे वाली बहुत है, लेकिन चल मैं तुझे घुमाने ले चलूं तेरा मैं मूड ठीक करूं। क्यों नाराज हो रही हो मुझसे? बहुत है लेकिन तू चल तो सही। हाँ तू चल तो सही। फिर वो अपने इलाके की तारीफ कर रहा है, उसको ले जा रहा है। ओके तो इसमें ये है, अगर अब तक आपको नहीं पता था। ओके, और आपने किस्सा भी हमें मैं वहाँ था लंदन में, तो सवास हमारी एक चप्पल है, ये सर्तल भी है, एक साथ सवास है जो खजूर की छाल से बनती है। आपने देखा होगा उसमें जो पिक्टोरियल देखा था, तो वो मैंने सवास पहनी हुई थी। और सवास में कमाल ये है कि वो आप पानी में चले जाएं, रेत में चले जाएं, बर्फ में चले जाएं, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी छाल की बनी हुई है और 2 डोरियों से ऐसे बनाई। मैंने उसकी अभी रिसेंटली चमड़े से ही बनवाई है और अपने दोस्तों को गिफ्ट भी किया है मैंने। वो बड़ा पॉपुलर गया, बहुत से प्लेस में मैंने पहना भी है। तो मैंने वो पहना हुआ था मैं, तो मैंने नोट किया कि कोई आदमी मुझे फॉलो कर रहा है। तो मैं कॉन्शियस हो गया थोड़ा सा। मैंने कहा ये फॉलो कर रहा है, पता नहीं क्या चाह रहा है, लूटना चाह रहा है मुझे या क्या। खैर वो फॉलो करते 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 मेरे होटल तक पहुंच गया। जब मैं होटल में दाखिल हुआ तो मैंने उसे लॉबी में दाखिल होते हुए देखा। मैं वहाँ गया, मैंने की लिया और मैं सीधे अपने कमरे में चला गया। 5 मिनट बाद मुझे रिसेप्शन से फोन आता है कि सर एक साहब आपसे मिलना चाह रहे हैं और बहुत इसरार कर रहे हैं, लोकल हैं, यहीं के हैं। नाम बताया जो भी था, इस वक्त मुझे याद नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, उन्हें आप बिठाएं, मैं आता हूँ। तो मैं आ गया, तो वही साहब थे। तो मैं उस वक्त वहाँ जाकर के मैंने वो उतार लिए थे, अपने सवास उतार लिए थे। मैं होटल की चप्पल पहन के कहते वेयर आर द शूज, वेयर आर द शूज। ये तो शूज के लिए बिकॉज ऑफ द शूज। मैंने बोला वेल द शूज आर इन माई रूम, आई वांट टू सी देम। मैंने कहा कम ऑन। मैं उसे कमरे में ले गया। मैं उसने देखा, पागल हो गया देख करके, उलट पलट के देखता रहा बड़ी देर तक। कहता है, अब मैं समझ गया कि उसको ये पसंद आई है ना। मैंने कहा इफ यू वांट देम आई कैन गिफ्ट यू। नो आई एम गोइंग टू परचेज इट। मैंने कहा नो यू कैंट परचेज इट बिकॉज दे आर टू एक्सपेंसिव।
حالانکہ بہت معمولی چیز ہے, مشکل سے وہ 20-25 روپے کی ہوتی ہے. میں نے اس کو ایسی تو اسے ڈالر پاؤنڈ نکال کے میرے سامنے رکھ دیا, کہہ لیں گے سر آپ کچھ بھی لے لو. یہ دیکھیے یہ ہماری ویلیو ہے, اور اگر ان چیزوں پہ ہم اس کی ویلیو ایڈیشن کر کے ان تمام چیزوں کو بھی ایکسپورٹ امپورٹ کا حصہ بڑے آرام سے بنا سکتے ہیں. ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اوکے. اب اس کے بعد کیا کیا نصرت اسے ذرا ختم ہو رہا ہے. اس کے بعد میں نے کہا ٹھیک ہے تم اسے پہنو, جو میں نے دے دیا. میں نے کہا آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک اینی منی اباؤٹ اٹ, آئی ایم پریزنٹنگ یو. تو دے دیا میں نے کہا گفٹ ہے میری طرف سے. بڑا خوش ہوا بیچارہ, پہنا اس نے پاؤں میں, اسے کمفرٹیبل لگا. تو میں نے کہا اب تم یہی پہن کے جاؤ. کہہ رہے نو آئی ایم گوئنگ ٹو پٹ دم ان دا شو کیس ان مائی ہاؤس. اور ہمارے ساتھ عبدالحمید صاحب ایکچولی قطر سے کال کر رہے ہیں, بڑی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوری آپ کو ویٹ کرایا, لیکن وہ ہمارا قصہ چل رہا تھا درمیان میں انٹرپٹ کرنا نہیں چاہتی تھی. جی نو پرابلم ایٹ آل. چونکہ آپ لوگ ہمارے بلوچ مہمانوں کو آج لائے ہیں, تو میں خود بھی بلونگ ہوں, بلوچ قبیلے سے ہوں, یا بلوچ قوم سے میں بھی ہوں. عبدالحمید میرا نام ہے. 7 سمندر پار سے میں ہمیشہ کال کرتا ہوں. بہرحال آپ لوگوں کو پہلے یہ ہے کہ جمعہ مبارک, اور دوسرا یہ ہے 2 مارچ جو بلوچ کلچر ڈے ہے. آپ سب کو مبارک ہو. آپ یہ بتائیے کہ آپ بلوچ کلچر میں یا اپنے اس قبیلے میں یا خاندان جو یہاں پاکستان میں ہے, اس میں کوئی چیز ایسی ہے جو مس کرتے ہیں وہاں پر قطر میں؟ ہاں, یہاں بھی باقاعدہ سیلیبریشن ہوتی ہے, یہ خاص کر آج, اور ڈنر پارٹی ہو. یہ جو یوتھ ہے ادھر کے, تو پارٹی کرتے ہیں, باقاعدہ ڈنر پارٹی آج ہے. ہم سب بلوچوں, اور ادھر ہے ویسے کمیونٹی بلوچوں کا, لیکن سب سے زیادہ جو ہے خلیج میں, عمان میں بلوچ زیادہ ہے, کیونکہ ادھر کے نیشنلٹی لیے ہوئے ہیں اور سٹیزن ہیں باقاعدہ. بہرحال میں داد دیتا ہوں اور اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کے پروگرام کو, جس نے ان مہمانوں کو سلیکٹ کیا ہے, اور ہمارے کلچر ڈے کا ڈیمانڈ مطلب پورا پوزیشن میں آپ لوگ آ گئے ہیں, اور لانگ والی چائے نے کمان دکھائی, ویسے کافی بند ہو گئی. بہرحال تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ نے کال کیا. اور مہالکا آپ مجھے بتائیے, ہم لوگ جیسے کہا جاتا ہے, انور صاحب نے کہا کہ بڑی اسٹرانگ قوم ہے بلوچ قوم, اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جنگ میں گئے, جیسے ہمارے پیکج میں بھی ہے, تو ہار کے واپس نہیں آنا ہے. اور اسی طرح سے اور بھی بہت سی چیزیں صحیح یا غلط ہماری اس قوم کے ساتھ جوڑی گئی ہیں, جس میں شاید آپ لوگوں کو دیکھ کر مجھے لگ رہا ہے کہ آپ سب بڑے روشن خیال ہیں. ورنہ ہمارے یہاں جب بلوچ فیملی کا کوئی کانسیپٹ آتا ہے یا لوگ اس پہ بات کرتے ہیں, تو وہ سمجھتے ہیں کہ خواتین کو اتنی امپاورمنٹ نہیں ہے. آپ نے پہلی بات تو شادی کے حوالے سے ہی بات کر کے بہت سی چیزوں کو میرے خیال میں نگیٹ کر دیا, لیکن پھر بھی میں جاننا چاہتی ہوں کہ کس طرح مطلب اگر ہمیں کسی کو بھی اکثر قومیت سے ریلیٹڈ یا زبان سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی چیز ٹیگ کی جاتی ہے کہ جی آپ کو تو شاید علیحدہ رکھا جاتا ہوگا, آپ کو تو اس طرح رکھا جاتا ہوگا, آپ کو تو اپنی مرضی سے پڑھائی کی یا کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. تو یہ تو صرف بلوچ قوم کی بات نہیں ہے. پاکستان میں اگر آپ دوسری قوموں بھی دیکھیں گے تو خواتین کو اکثر یہ کہہ کے گھر میں بٹھایا جاتا ہے کہ یہ گھر کی عزت ہے. تو میں ہمیشہ یہ بات سوچتی ہوں کہ گھر کی عزت بڑی بات ہے, اور غلامی میں تھوڑا سا فرق ہونا چاہیے. آپ جس کو گھر کی عزت کہتے ہیں, آپ اس کو مضبوط بھی کریں اتنا کہ اس کی زندگی میں اگر کوئی سچویشن ایسی آ جائے کہ اسے باہر کے کام کرنا پڑے, تو عزت سے کسی سیٹ پہ بیٹھ کے کام کرے, نہ کہ اس کے ہاتھ میں کوئی جھاڑو پہنچا ہو, اور وہ مطلب ہم خود اس چیز کو اختیار کریں, اپنی خواتین کو ریسپیکٹیبل نظروں سے لوگ اسے دیکھیں. تو دوسری بات جو ہماری بات ہے ایز این آرٹسٹ, تو میں نے کافی چیزیں فیس کی, اور میرے خیال سے آپ بھی فیس کرتی ہیں. ہم سب جو پاکستان میں رہتے ہیں وہ ان چیزوں کا تو ہوتا ہے, لیکن اپریشیٹ کرنے والے بہت ہیں ہمارے بلوچوں میں جو اپریشیٹ کرتے ہیں. میں نے ایک تصویر دی تھی فیس بک پہ, تو وہاں پہ نیچے کسی نے ایسے کوئی عجیب سا کمنٹ کر دیا تھا, تو میں نے وہ کمنٹ ڈیلیٹ نہیں کیا. میں نے کہا میں دیکھوں ذرا لوگوں کا مائنڈ کتنا چینج ہوا ہے. تو مجھے میرے فالوورز زیادہ بلوچ ہیں, تو نیچے جو اس بندے کی تذلیل ہوئی ہے وہ مجھے بڑی خوشی ہوئی. اچھا میں نے یہ دیکھا کہ ایک بندہ جس کا ذہن ابھی بدلا نہیں, لیکن بدلے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو میں انہی لوگوں کو کریڈٹ دینا چاہوں گی اس کی, کیونکہ شروعات انہوں نے ہی کی تھی لوگ بلوچ لڑکیوں کو میڈیا میں لانے کی, اور ایک چینل انہوں نے بنایا, اور ہم سب کو موقع ملا اپنا ٹیلنٹ دکھانے کے لیے, اور ہم وہاں سے سیکھے بھی کہ میرا فیس کیسے ہوتا ہے, لوگوں سے بات کیسے ہوتی ہے. کیونکہ میری جو پرورش ہوئی ہے بہت زیادہ میں بند تھی اپنے گھر میں, اور مجھے اتنا کانفیڈینس نہیں تھا کہ میں لوگوں سے بات کر سکتی.
اور جب میں آڈیشن کے لیے گئی تھی بہت میرا برا آڈیشن دیا تھا لیکن پھر میں سلیکٹ ہوئی تھی لیکن بعد میں جب میں نے خود کو دیکھا مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ یہ میں دیکھیے نا اب آپ جس طرح سے جتنے پیارے انداز میں کر رہی ہیں اور جس کانفیڈنس کے ساتھ آپ بات کر رہی ہیں تو واقعی یہ سب تو میرے خیال میں بنیادی حق بھی ہے. کسی کو بات کرنا آئے, کسی کو زندگی کا سلیقہ آئے, آپ کی پرسنالٹی گروم ہو, آپ ایجوکیٹڈ ہو, آپ کی ٹریننگ ہو, یہ تو میرے خیال میں ارریسپیکٹولی کہ مرد ہے عورت ہے اس کا بنیادی حق ہے. ہمارے تو نبی نے فرمایا ہے کہ آپ لوگ برابر ہیں, آپ عورتوں کو کم سمجھیں, تو اگر عورتوں کو کم سمجھیں گے تو ہم اپنے دین سے ہی خارج ہو جائیں گے. یہ ایک مسکنسیپشن ہے, یہ روایات جو ہے یہ ہم نے بنائے ہیں انسانوں نے. اگر ہم مذہبی روایات کے اس میں جائیں گے تو وہاں پہ دونوں کے حقوق برابر. ہاں تو کسی بھی انسان کو یا کسی بھی جینڈر پہ رکھ کے ہمارے مذہب میں تو کوئی ایسی زیادتی خدا نہ خواستہ کسی بھی مذہب میں نہیں ہوتی. اور ہم جب اپنے دین کی بات کرتے ہیں تو ہم تو اس کو عالم دین کہتے ہیں. تو پورے عالم میں جو ہر جگہ پر ہر وقت میں ہر کسی کے لیے سوٹیبل یا موسٹ سوٹیبل ہو سکتا ہے وہ ہے ہمارا مذہب. خیر آپ لوگوں کی طرف آتے ہیں اور آپ لوگ جب کسی کو بتاتے ہو, لوگ آپس میں ڈسکشن بھی کرتے ہیں نا فرینڈس وغیرہ کے, ہاں تم پنجابی ہو, تم یہ تم وہ, تو تم لوگ جب بتاتے ہو کہ ہم بلوچ ہیں تو لوگوں کا پہلا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ تو بہت حیران ہو جاتے ہیں. ان کو لوگوں کو میرے حساب سے بہت زیادہ مسکنسیپشن ہے بلوچوں کے حوالے سے. لوگوں کو کلچر کا اتنا پتہ نہیں ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ بلوچ بولتے ہیں یا بلوچی یہ بولتے ہیں, اور پھر جب ہم بات کرتے ہیں اردو ہم صاف بولتے ہیں یا تو ہم انگلش بول رہے ہیں. اچھا کپڑے بھی آپ یہ نہیں پہنے ہوتے ہوں گے اور اردو بھی صاف بول رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہوں گے تو لگتا نہیں ہے, بولتے کہ نہیں بولنے آتی ہے. اور پھر جب وہ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہم فون پہ یا کہیں پہ باقاعدہ اپنے گھر کے لوگوں سے بلوچی میں بات کرتے ہیں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں. تو بہت کم چیزیں لوگوں کو بلوچوں کے بارے میں پتہ ہے, یا تو یہ لگتا ہے کہ بلوچ ایجوکیشن حاصل نہیں کرتا, جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. الحمدللہ ہم لوگ جس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں ہم لوگوں کو سب کچھ اچھے سے سکھایا سمجھایا, لیکن ہمیں ہے فریڈم ہے کہ ہم اپنی چوائسز بنائیں, یا تو ہم کہاں پڑھنا چاہتے ہیں, کتنا پڑھنا چاہتے ہیں, یہ ہم پر ہے. جاب کرنا چاہتے ہیں, یہ کیا کرنا چاہتے ہیں, سب کچھ ساری تربیت وغیرہ کر کے ہمیں یہ رائٹ دیا گیا ہے بالکل صحیح طریقے سے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. اور پھر اب ہم اتنے بڑے ہو بھی چکے ہیں, اتنا سمجھتے ہیں کہ صحیح یہ کیا ہے غلط کیا ہے. ہم آپ کو ایسی کوئی بات یاد آتی ہے؟ جی تو پہلی بات تو جیسے مشل نے کہا کہ وہ بولتے ہیں کہ لگتے تو نہیں ہو, تو ان سب کو لگتا ہے کہ بلوچوں کے اسٹریٹ بال نہیں ہو سکتے. اور ہمارے تو بالکل ڈیڈ اسٹریٹ بال ہے. ہمارے بالوں سے جج کرتے ہیں کلچر اور کلر میں کیا ہے. اچھا دو ایکسٹریم بھی ہیں, مجھے بتائیے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بلوچ بہت خوبصورت ہوتے ہیں, وہ گورے ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ ان کا ڈارک کمپلیکشن ہوتا ہے, ان کے بال کٹے ہوتے ہیں. دیکھیے دو الگ کیوں ہے یہ نصرت ایسا ہے کہ یہ تو جغرافیائی وہ ہے نا, یہ تو جغرافیکل ہوا ہے. جو انسان جہاں پر رہے گا اس کے چہرہ مورا ویسے ہو جائے گا. بالکل. تو یہ جو بلیک کمپلیکشن کے ہیں یا گنگریالے بال والے یہ افریقن اوریجن سے آئے نا. یہ لوگ جب یہاں پر لائے گئے پاکستان میں, جب آئے یہ سب کانٹیننٹ میں, تو یہاں پر سوائے بلوچی اور کچھی کے دوسری زبان نہیں بولی جاتی تھی. یا تو بلوچ آباد تھے یہاں پہ. کراچی کا نام کراچی کیوں ہے؟ کلانچ ہمارا ایک علاقہ ہے. کلانچ سے ایک صاحب آئے, وہ وہاں ٹھہرے اور کچھیوں نے اس سے پوچھا تم کہاں سے؟ اس نے کہا کلانچی سے. تو اس جگہ کا نام کلانچی سے گوٹ ہو گیا, وہی کراچی ہو گیا آج کل. تو اب وہ جو لوگوں یہ جو آئے یہاں سے تو انہوں نے جو زبان سنی وہ بلوچی سنی یا کچھی سنی, اس لیے ان کے لینگویج میں آپ کو زیادہ تر کچھی کے الفاظ ملیں گے اور بلوچی کے الفاظ. اوکے, تو یہ وجہ ہے. اور تم لوگ کے تو واقعی بڑے سیدھے بال ہیں. مکرانی ہم ہیں, ہم مکرانی ہیں, مکرانی کے ہم مکرانی ہیں. وہ بولتے ہیں مکرانی پیسے نہیں ہوتے. اچھا کوئی ڈر بھی جاتے ہیں کہ بھائی یہ تو بلوچ گھومتے ہیں وہ بہادری ہوتی ہے, تو اس پہ وہ بولتے ہیں کہ یہ بلوچ آ گئے, یہ کر دیں گے, وہ کرتے. اصل میں ڈر کم ہوتا ہے. مطلب کوئی بھی چیز اگر لگتا ہے ان کو, میں نے جو نوٹ کی ہے کہ اگر کوئی بات غلط لگ رہی تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ بھائی ہمارا ہمیں پروموٹ کرنے سے روکے گا, یہ ہمیں مارکس کم دے گا, تو وہ بول دیتے کہ یہ ایسے ایسے. تو اس بات سے ان کو لگتا ہے کہ وہ بھائی یہ بہادر ہیں, یہ کر دیں گے. وہ باتیں بولی ہیں تم لوگوں نے, اس کو ذرا بلوچ اپنی لینگویج میں بلوچی میں کہہ کے دکھاؤ. بلوچی میں یہی بات. ہاں ذرا پتہ لگے نا بلوچی کیسے لگتی ہے سنتے ہوئے. جیسے ماں کوئی بھی جا گئے رمے یا مردمانی کو ملنے کو رانچو کہنا کہہ رہے بلوچے باری چھے کا سینا مارا اور انچو کچھ بھی نہیں. لوگوں کو
पूरे बलोची में से एक ही फ्रेज याद है, चीयर दिस इज नॉट इवन अ वर्ड इन बलोची। ये जैसे पठान के लिए खोचा बोलते हैं ना। अब मैं एक ड्रामा कर रहा था कोयटा से, पश्तो कैरेक्टर था, तो मुझे वहाँ के पठान कह रहे हैं अनूर भाई खोचा मत बोलिएगा। मैंने कहा मैं खो भी बोलूंगा और छे भी बोलूंगा, लेकिन इनको साथ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे मैं लैंग्वेज बहुत सारे लैंग्वेज मुझे आते हैं, मुझे पता है खो का मतलब है तो, और छे का मतलब है क्या। तो अगर वो मैंने कहा कोई भी तो क्या साथ नहीं बोलता ना, ये तुम लोगों ने बना दिया, वो खो बोलते हैं। अच्छा, हम तो तुम्हारा ये जो इन्होंने बताया कि ये फ्रेज है, हाँ चीयर है, बिग फ्रेज चीयर है, मतलब इनको दिस इज नॉट इवन बलोची। आप सुन लिया ना, अंडरस्टैंड। मैं तो बोल रही हूँ, मैं बलोच हूँ, मुझे बलोची आती है, ये वर्ड नहीं है। नहीं, हमने तो सुना है, तो यही सुना है यार, आपने गलत सुना है, जहाँ से भी सुना है। करेक्शन नहीं करनी है, बस जो है दिमाग में अग्रेशन है आप लोगों में, वो बलोच वाला जो कहते हैं खून बड़ा गर्म है, अग्रेशन है। एक होता है लड़ाई करने का शौक, एक होती है रिटेलिएशन, जब आपको हक नहीं मिलता ना अपना, तो आप अपनी आवाज उठाते हैं, ठीक है। जो हमारी रिटेलिएशन होती है ना हमारी आवाम की, यार हमें नहीं मिल रहा, सुई से गैस निकल रही है, सुई के लोग को नहीं मिल रही, वो रिटेलिएट करते हैं, तो लोगों को लगता है कि यार तो जंगी है, तो क्या बात है, कितनी अच्छी तरह ये एक्सप्लेन कर रही है। आज मुझे बड़ा मजा आ रहा है तुम लोगों से बात करके, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। अब जैसे अगर आप देखें तो सुई से जितना पाकिस्तान का गैस सुई से निकलता है, उतना बाकी सारे जराए को मिलाए तो क्वार्टर भी इसका नहीं बनता, लेकिन सुई में खुद गैस सुई तो दूर है, सबसे आखिर में कोयटा में गैस आई थी। मतलब अगर ये आपको नहीं दें, जिसकी जो चीज है आप उसी को इस्तेमाल करो, और जिसकी है उसको नहीं मिलती तो उस पर वो रिटेलिएट करते हैं। बड़ा मजा आ रहा है आज, ये लोग अपनी सारी बातें कंप्लीट करें, बात कंप्लीट करो तो फिर हम गाना सुन रहे हैं। ये बोलना चाहिए थी कि इवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आई हैव डन अ होल रिसर्च ऑन दिस। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, आई डोंट रिमेम्बर द आर्टिकल, के जिस प्रोविंस से कोई नेचुरल रिसोर्स निकलता है सबसे पहले उस प्रोविंस को वो प्रोविजन होगी। लेकिन it took 4 years for them to get the gas to Sui, even though it was right. In 2 years वो पंजाब में पहुंच चुकी थी, वो खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, हर जगह पहुंच चुकी थी। This is unfair at Pakistan Petroleum Limited. So I was looking at all these things. तो मैंने भी यही चीज देखी कि सुई से इतना गैस आता है और वहीं के लोग इस चीज से डिप्राइव्ड है। अच्छा जी, चले हम ये इन लोगों के पास पूरे आर्ग्यूमेंट्स मौजूद हैं, एंड आई थिंक आई हैव गॉटन दिस चांस फॉर माई सेल्फ ऑल्सो कि मुझे आज बहुत सी चीजें पता चल रही हैं इस फोरम से, आपको हम सब के बारे में, हम सबको एक दूसरे के बारे में पता चल रही है, बिकॉज वी कॉन्स्टिट्यूट वन कंट्री एंड दैट इज पाकिस्तान। तो जी सॉन्ग नोके परबंदे मनी वती जिंदे गुश्तगी ने और मनी वालिया में नोके आओ के वालिया में चार बंदे माँ वती बलोच राजे वास्ता इशरा डेलीगेट का ना शायर अब्दुल मन्नान मेहरे के दिलगोश। गमे तहारियतो जिंदगी गुशान दोस्त, गमे तहारियतो जिंदगी गुशान दोस्त, मनार मुक्ता तो मुक्ता मना कुशान दोस्त, गमे तहारियतो जिंदगी गुशान दोस्त, मनार मुक्ता तो मुक्ता मना कुशान दोस्त, गमे तहारियतो जिंदगी गुशान दोस्त। पपुल जिंदगा दस्तान ज़ेमी पर पिकने,
पपुल्ल सिंदगा दस्तान जेमी पर चिकने पपुल्ल सिंदगा दस्तान जेमी पर चिकने मना कुलू का मनदरा कई निशाने दोस्त मना कुलू का मनदरा कई निशाने दोस्त गमे तारियतो जिंदगी गुशाने दोस्त गमे तारियतो जिंदगी गुशाने दोस्त मनार मुक्त तो मुक्ता मना कुशाने दोस्त तेज सर कुतारा बंद त्राण में रानी तो तेज सर कुतारा बंद त्राण में रानी तो तेज सर कुतारा बंद त्राण में रानी छुपाए दग कुशंदी में रग गुशाने दूर छुपाए दग कुशंदी में रग गुशाने दूर गमे तारियतो जिंदगी गुशाने दूत गमे तारियतो जिंदगी गुशाने दूत मनारा मुक्त तो मुक्ता मना गुशाने दूत मनारा मुक्त तो मुक्ता मना गुशाने दूत पा गई तई मन जरर बाजुरता पा गई तई मन जरर बाजुरता पा गई तई मन जरर बाजुरता भले तु दुज में न मन्ना न तो दृशाने दूत भले तु दुज में न मन्ना न तो दृशाने दूत गमे तारियतो जिंदगी गुशाने दूत गमे तारियतो जिंदगी गुशाने दूत मनार मुक्त तो मुक्ता मना गुशाने दूत मनार मुक्त तो मुक्ता मना गुशाने दूत मनार मुक्त तो मुक्ता मना गुशाने दूत। वेरी नाइस, ये आपका अपना सॉन्ग है। हाँ, और इसमें हमें कुछ ज्यादा समझ नहीं आया क्योंकि पहला नहीं थी ना। ये वो नहीं है ना, आम नहीं है। आम की चीज जैसे कि नाज़ीना बलूचाना। हाँ, हमारा एक ये भी सुनाइएगा। ये आता है आपको? ये नहीं आता है नाज़ीना बलूचाना? नहीं याद नहीं तो कोई बात। ये हमारा मतलब एक तरह का कौमी तराना है। नाज़ीना बलूचाना। और ये सभी गाते रहते हैं अक्सर, तो उस्ताद को इस वक्त नहीं याद आ रहा होगा, कोई बात नहीं। लेकिन आपको इसका म्यूजिक तो आता होगा ना? हाँ, थोड़ी देर में इस पे म्यूजिक हम सुनेंगे इसका। नाज़ीना बलूचाना बल्कि सुन लेते हैं, अभी म्यूजिक सुन लेते हैं सिर्फ उसका। म्यूजिक तो सुन सकते हैं। मुझे याद है। नाज़ीना बलूचाना नाज़ीना बलूचाना वती शेर मज़ाराना वती शेर मज़ाराना नाज़ीना बलूचाना नाज़ीना बलूचाना नाज़ीना बलूचाना नाज़ीना बलूचाना नाज़ीना बलूचाना
क्या करे औलाद ग्वारा में जगर बंदे, क्या करे औलाद ग्वारा में जगर बंदे, क्या करे औलाद ग्वारा में जगर बंदे, ले वती वीराना, ले वती वीराना, ना देना बलोचाना, ना देना बलोचाना, ना देना बलोचाना, ना देना बलोचाना, बलोचा मन बलोचा, ना देना बलोचा, बलोचा मन बलोचा, ना देना बलोचा। सर सब्ज बलूचिस्तान का बाग बलूचिस्तान का बाग बलूचिस्तान, सर सब्ज बलूचिस्तान का बाग बलूचिस्तान, ले वती वीराना, ले वती वीराना, ना देना बलूचाना, ना देना बलूचाना, ना देना बलूचाना, बलूचा बलूचा मन्ना देना बलूचा, बलूचा बलूचा मना देना बलूचा। आ गई थी महालका, तो पूरा एंजॉय किया है। ये गाना मुझे बहुत पसंद है ना, इसका म्यूजिक ही ऑन हुआ तो महालका ने कहा मुझे तो भाई वो बिल्कुल उसमें खो गई थी, है ना। अच्छा मुझे एक बात बताइए महालका, आपने भी ये ज्वेलरी जो पहनी है ये मुझे स्पेशल लग रही है। अच्छा हाँ, इसका कोई खास ताल्लुक है? इसको कहते हैं बलूची में टासनी। अच्छा टासनी, टासनी भी कहते हैं, जॉक भी कहते हैं। हाँ अच्छा, तो ये जो है ये हमारा जो ड्रेस होता है उसमें इसको कहते हैं जी, ये यहाँ से थोड़ा खुला होता है तो उसको बंद करने के लिए फैशन भी है। अच्छा मतलब गुलूबंद समझ लें, गिरेबान समझ लें, गिरेबान बंद समझ लें। क्या बात है भाई, वेरी नाइस। और आपने भी ये भी वही है, इसने भी टासनी पहनी हुई है। अच्छा, और ये सिक्के का कोई रोल है आपकी ज्वेलरी में खास? नहीं। हाँ नहीं। अच्छा, क्योंकि लोगों को ये भी लगता है, आज मेरे मेकअप आर्टिस्ट ये अरबी स्टाइल दे तो आप ये सिक्के वाली कोई चीज पहने। मैंने कहा अच्छा, मैं कहा पूछूंगी आप लोगों से। कुछ है, कुछ लोगों में है ये चीजें पहनते हैं वो लोग। अरबों में ये जो सिक्के हैं, सिक्के अरबों में ज्यादा, अरबों में ज्यादा, हम क्योंकि ओरिजिनली हमारा ओरिजिनल अरबिस्तान है ना, तो वो चीज लोग उसको कनेक्ट करते हैं। ओके, तो ये इतना बड़ी ब्यूटीफुल चीज है आप लोगों के पास, खजाने रखे हुए आप लोगों ने अपने पास दबा के। किसी दिन इसकी एग्जीबिशन करनी चाहिए। नहीं, हम तो करते रहते हैं, हमने किया, लास्ट ईयर हमने किया था। अब मुझे बुलाना एग्जीबिशन में। अब इंशाल्लाह ताला इतनी सारी अच्छी अच्छी अमेजिंग चीजें हम मांगते हैं, जैसे हमें कल भी हमने एग्जीबिशन किया था, कल भी आर्ट काउंसिल में हमने एग्जीबिशन रखा हुआ था। और इसका नाम क्या है, मैं दोबारा भूल गई। सर्कल को मैं नहीं भूलूंगी। अब आपको पता है नुसरत, ये जो सर्कल है ये बेल्ट में भी होता है, हेड के अंदर भी होता है, घड़ी के स्ट्रैप्स भी होते हैं, ये हर चीज बन सकती है। बैग होते हैं, हैंड बैग होते हैं, औरतों के पर्स होते हैं, ये सब हाथ का काम इज सो इम्पोर्टेंट। मतलब इतना फैबुलस और फेमस होता है, लोगों को इतना पसंद आता है। तो आप लोग अपनी एज ग्रुप में जब देखते हैं, उनको भी फैसिनेट करता है ये हाथ का काम, या आप लोगों का खास तौर पे? अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी में ड्रेस पहन के चली, मैं एक दफा गई थी, तो मतलब लोग एक्चुअली आपको देख रहे होते हैं, आपको थोड़ा वियर्ड लगता है कि सब मुझे स्टैंड क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो अच्छे उससे देख रहे होते हैं, वो एडमायर कर रहे होते हैं कि यार इतना डिफरेंट कलर्स है, क्योंकि ये कलर, ये रेड यूजुअली कोई नहीं पहनेगा। ये रेड बहुत ब्राइट है, लेकिन ये ब्राइट रेड भी इतना सोफिस्टिकेटेड लगता है जब आप उसको एक ड्रेस में अच्छे से करते हो। तो बहुत यूनिवर्सिटी में आराम से कैरी कर सकते हैं। मैंने अपने कॉन्वोकेशन में जो है ग्रेजुएट मैंने व्यू, तो मैंने बलोची पहना था, तो वहाँ पे सब ऐसे देखे जा रहे थे और पूछ रहे थे ये हाथ का है, उतना एक्साइटेड हो रहे थे, देख के उतना फैसिनेट हो रहे थे कि ये इतना ये सारा हाथ का बना। लेकिन अच्छी बात ये है कि आपने तालीम हासिल करने के बाद, ग्रो करने के बाद भी अपनी तमाम कल्चर को उसी तरह से प्यार किया है। आप उसे लेकर चलते हैं, आप कॉन्वोकेशन से लेकर यूनिवर्सिटी में हर जगह उसे पहनते हैं, यू टॉक अबाउट इट। तो आई थिंक दैट्स
an achievement for yourself? That is because brought up like that. हमारी फैमिली में हमेशा अपने अच्छा, कल्चर मेरे प्रोड्यूसर ने कहा है कि आप मेरी बात मान लें वरना मैं नीचे आके कहूंगा आपसे कि प्रोग्राम खत्म करना है। ठीक है, तो अब मुझे माननी पड़ेगी उनकी बात। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का और यहाँ आने का और बहुत सी अच्छी बातें करने का। आप सब अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, ये गाना सुनते हुए जाइए, फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।